Assalamu alaikum everyone. I hope I'm visible and audible. Let me just check the comment settings. Okay, yes, I think I'm visible. Hi Shaista. Can you please let me know in the comment section if I'm visible and audible? Okay, so far I see 4 people have joined in. Alright. So, Assalamu alaikum everyone. How is everyone doing? How are you all? Hi sir, Assalamu alaikum. How is everybody doing? I can see a few people joining in. Okay, good. That I'm audible and visible, right? So, and I hope that the description of the topic that I've added is also visible. Can somebody please let me know that? I've just added a description about the thing that we're going to talk about today. So I hope that's visible. Okay, volume, let me just check. It's full at my end. I really don't know what's the issue. Is it better now? Probably there might be some sort of issue at your end. Please check it out. You might be needing some earplugs, I guess, for that, because over here the volume is full. And yes, is everybody else able to hear me clearly, or is my sound low for everyone? I need to know that. Please drop your comments. If I am visible and audible, clearly audible to everyone. I got to know that yes, you guys are able to see me, but what about the sound? Okay, fine, perfect, right. Okay, and is the description there? Is it visible? I've just added over there, I mean on the top of the, live session. Okay, so if any of you had seen the poster that was there a day before, so it was about being a jack of all trades and a master of none, right? So this is a very crucial topic that actually I wanted to speak about today with my audience, and also get to know about their viewpoints regarding it, and as to what do they think about it. And I wanted to know that are we all on the same page being members of the teaching industry, or does anybody else think somewhat differently than me? So first of all, I would like to ask you people this question, that what do you understand by this phrase of being a jack of all trades? If I say that you're a jack of all trades, what do you really understand by this? What do you think it means? I need to know the responses. I'd be it'll make me really glad if my lovely audience participates in the comment section by answering, and if any question also comes up, I'd love to answer. So yes, what does being a jack of all trade means to you people? Have you yourself ever been that, or has anybody ever experienced that or seen someone who's a jack of all trades? I can see Miss Saima Kashif. She's there. Hi Sarvat, hi Saima, assalamu alaikum. I hope you guys are doing great. It's so lovely to see you here, Miss Saima Kashif, after so long. It's always great to have such lovely colleagues on board after such a long time. It's so nice to see you. Okay, so I haven't gotten any response yet, and still I see people are joining in. Thank you for joining, by the way. Okay, so my question to the people who just joined right now, so they can simply tell me what do they understand by the title being a jack of all trades. Okay, Binish, I saw your comment. If there is no comment option, so dear, I really don't know probably which device are you online with right now, but there is supposed to be a comment, or maybe it's because I think you're not on the list, I believe that's why. Yes, people who are on the list I think would be able to have that access to the comment option. So I'd like to hear from you guys. Hi Yumna. Yes, hello. All right.
anyway, until we collect responses, I'll get back to them later. So first of all, like if we look at this term that being a jack of all trades, it means somebody, right, जो एक इंसान बहुत सारे काम कर सकता है या मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है. अब अगर हम टीचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो लेट्स से इन अ वे और दी अदर, you know, a teacher, an educator is somewhat like a jack of all trades in the sense कि हम multitasking कर रहे होते हैं, right? And a lot of you would like agree with me in this regard कि being educators हम एक साथ हमारे पास you know बहुत काम होते हैं करने को, in terms of if like a homeroom teacher, we're running around, we're grading papers, we're taking you know assessments, we're teaching, we're like you know taking attendance and you know what not. I mean every single thing that's on our JD or even that's not. So but we're doing it because it's again you know we have to perform all those duties being like I mean an educator. We're handling students, we're counseling them and you know like a lot of activities and everything that comes in between. लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है जो बिलखुसूस मैं जिस पे बात करना चाह रही हूँ वो बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट अ मास्टर ऑफ नन है. सो नाउ देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू phrases. The first one is an idiomatic expression and there is nothing wrong absolutely by being a jack of all trades, because when we are a jack of all trades it simply means that हम एक मतलब यानी कि बहुत सारे काम या मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और हम डिफरेंट कामों को एक साथ अंजाम दे सकते हैं, विच इज़ क्वाइट अ स्किल एंड यू नो इट्स अ नाइस थिंग. बट इफ वी आई मीन थिंक अबाउट दिस थिंग दैट we are a master of none and yet we are trying to you know like kind of put our leg in every other thing at the same time. So there is where the problem you know begins. Now I hope that you people might be kind of perceiving as to what am I trying to talk about today. So any guesses or any you know ideas आप लोगों की तरफ से कोई response कि अब आपको क्या लगता है exactly के topic क्या होगा. Hello Farhan, hi बच्चे, I saw you, thanks for joining. It's so lovely to see when your students also pop in your live sessions to pay regards. Okay. So anybody, I've got such wonderful people sitting over here. Miss Sarvat, Miss Saima Kashif, I'm really looking forward from you guys, you know, to you know speak something. Mashallah, such experienced personalities we've got here who have such wealth of experience in the industry. Yumna, I can also see you there. Does anybody want to answer? कि अगर हम ये कहते हैं कि समवन इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट देयर आर मास्टर ऑफ नन, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ एंड हाउ इज दिस समथिंग दैट्स यू नो नॉट समथिंग वेरी पॉजिटिव. एनी आइडिया? ओके, सो you people can like you know constantly give your response in the middle. I'll try and get back to the responses as I get, because I think थोड़ा सा loading का भी issue आ रहा है, probably not really sure because बहुत ज़्यादा ठहर के आई कैन यू नो सी द रिस्पॉन्सेज. सो या ऑलराइट, सो देयर इज़ दिस प्रॉब्लम दैट आई जस्ट सॉ लाइक यू नो आई मीन कोई 2 दिन हुए होंगे इस बात को. अभी 2 दिन पहले एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है बेसिकली वेयर लाइक अ लॉट ऑफ वेकेंसीज एंड अपॉर्चुनिटीज आर पोस्टेड. Obviously I'm not going to mention the name because it's not very reasonable to mention you know any like brands or you know platforms name like that on record, but it was very disappointing when I saw this supposedly an educator out there who actually like you know like called herself a teacher, and she mentioned this one statement out there that you know I can teach every subject but mathematics is like my expertise. तो मतलब मुझे बड़ा एक you know अजीब सा लाइक ये बात लगी उनकी, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ खैर कि इस तरह की मैंने कोई बात देखी और मुझे बड़ा अजीब लगा. आई हैव बीन यू नो reading and like going through these kind of bizarre comments like almost all my life now, ever since I have you know been a part of the teaching industry myself, which is good 13.5 to 14 years. तो मैंने कई बार लोगों को ना ऐसी अजीब किस्म की, जिनको मैं मतलब अहमकाना बातें कहूँगी, सॉरी टू से बिकॉज दे आर एक्चुअली, तो ये करते हुए सुना है कि हम तो सब पढ़ा सकते हैं, मतलब हमें तो सब कुछ आता है, हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं. यानी कि मतलब आप केमिस्ट्री के भी माहिर हैं, आप फिजिक्स के भी हैं, आप मैथ के भी हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू, PST, इस्लामियात, यू नो एवरीथिंग. तो आई मीन हाउ डू आई साउंड लाइक दैट? आई मीन हाउ डू आई साउंड राइट नाउ टू यू पीपल व्हेन आई एम सेइंग दिस? अगर इफ़ आई स्टैंड अप एंड क्लेम कि भाई मैं तो सारी दुनिया के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हूँ और मुझे तो बहुत ना महारत है इन पर ना, मतलब आई एम गोइंग टू साउंड स्टूपिड, राइट? बिकॉज दिस इज स्टूपिड, एक्चुअली इट्स वेरी स्टूपिड. बिकॉज ये जो लोग इस तरह के रिमार्क्स देते हैं कि हमें तो सब आता है या हम सब कुछ करवा सकते हैं, वो एक बात नहीं सोचते
कि पहली बात तो देर इज़ नो सच ह्यूमनली पॉसिबल क्राइटेरिया और थिंग ऑफ एज सच, मतलब यू नो नोइंग दिस, मतलब सेइंग दिस थिंग कि आपको सब आता है या आप सब करवा सकते हैं, बिकॉज it's all about, you know, actually having expertise in something. If I am an educator of English, so I am, you know, very happy, alhamdulillah, and very satisfied to say, it's very safe to say that अगर मैं इन 14 सालों से इंडस्ट्री का पार्ट हूँ या मेरे एंड पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को ही, आई हैव स्टक विद दिस, यू नो, वन डोमेन, एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ थॉरली फॉर दिस, यू नो, थिंग, इन दिस थिंग, लिटरेचर एंड लैंग्वेज अगर मेरा डोमेन है. एंड इट मेक्स मोर सेंस, इट वुड मेक मोर सेंस अगर हमारे टीचर्स और एजुकेटर्स भी अपनी इस बात को, यानी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि जब वो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, या यू नो व्हेन दे आर वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स समथिंग, और वो जब कोई चीज़ टीच करते हैं, तो दे शुड मेक, यू नो, दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ जो उनका होता है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको वो लेके चलें, ना कि दे शुड बी गोइंग अराउंड क्लेमिंग देयर, यू नो, आई मीन सो कॉल्ड एक्सपर्टीज और यू नो एक्सेप्शन इन एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. मतलब एक होता है किसी चीज़ की थोड़ी नॉलेज होना, और एक होता है किसी चीज़ का मुकम्मल उबूर हासिल होना, एंड देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दीज टू थिंग्स. मतलब इफ़ एनीबडी सेज कि वो हर चीज़ पढ़ा सकता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो इतना बड़ा क्लेम दे रहा है कि वो उस सब्जेक्ट की पूरी कोर, मतलब वैल्यूज़ जानता है, इन्स एंड आउट्स उसे सारे सब्जेक्ट के पता हैं, वो उसकी पूरी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, उसकी पूरी फिलॉसफी, लाइक व्हाट इज़ दैट सब्जेक्ट अबाउट, that person can literally juggle with anything, just about anything that comes before them in that particular domain without flinching. So is that possible? That's not, because एक इंसान एक टाइम पे, अब पहली बात तो डिस्ट्रैक्ट हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स. आई मीन इट्स नॉट अबाउट ओनली हैविंग ADHD और समथिंग और डिसलेक्सिया. ये एक नॉर्मल ह्यूमन एक नेचर है, एक ह्यूमन साइकी है कि बहुत ज़्यादा अगर हम एक साथ हम 10 मतलब चीज़ों में पैर रखते हैं ना, काम ख़राब होता है. बिकॉज जाहिर सी बात है, फोकस रेजिस्ट मतलब करना या उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. हाँ, 1 से 2 या 3 सब्जेक्ट्स तो फिर अभी एट टाइम्स ऐसा होता है कि लोग पढ़ा लेते हैं, बिकॉज दे काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड. इफ़ आई टॉक अबाउट द बिजनेस सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, और है ना, मतलब जो वो हैं लाइक बिजनेस स्टडीज़ है, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं बिजनेस के, तो बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, फिर कभी कभी जो है वो दूसरे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक अकाउंटिंग वगैरह. तो एक टीचर जो है वो 2-3 सब्जेक्ट्स एट टाइम्स मैनेज कर रहा होता है. दे आर जगलिंग विद इट बिकॉज ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स और काइंड ऑफ द थियोरेटिकल अप्रोच दैट इज समवट द सेम इन, यू नो, दीज सब्जेक्ट्स, दे क्वाइट इंटरलिंक्ड. बट सब्जेक्ट्स एज लाइक अंग्रेजी एंड पाकिस्तान स्टडीज, लाइक कम ऑन, they are two opposite poles. there is absolutely zero connection, no sense. मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसी चीज़ है कि पहली बात तो देर नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, और मतलब ये इस तरह से कोई चीज़ को आपको अप्रोच करने से पहले उसको खुद फिंगर टिप्स पे बहुत सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए. imparting knowledge in someone is something very different, and actually knowing that thing like, you know, 100% by heart, and like, you know, actually उसकी रूह को समझना, that is something totally different, which I don't understand. How can somebody just, you know, claim to, like, you know, know. So Sarvat says that some schools also expect the same. Sarvat, my dear, not some. ये हमारे पाकिस्तानियों का अलमिया है कि मतलब, you know, बहुत ज़्यादा schools हैं. मैं तो इन 14 सालों में I don't know मैंने कितने, I've lost count of the schools and the number of people I've seen talking like this kind of, you know, about this behavioral pattern कि we want a person who can teach like this, this, this and this. एक टीचर से 4-5 सब्जेक्ट्स का काम लेना होता है. ये सोचे बगैर कि उसके रेपरकशंस कितने खतरनाक होंगे बच्चों के ऊपर. It is the student body ultimately who is being affected, and students who are being, like, you know, either ruined or flourished. मतलब बच्चा है वो जो एंड में सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है. टीचर को कुछ आने के तो बहुत बेहतरीन बात है, और टीचर को कुछ ना आने के भी. मतलब अगर टीचर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रखता है, अगर इफ द पर्सन इज, यू नो, आई मीन एक्सेलिंग इन व्हाट दे डू, सो देन दैट्स समथिंग रियली गुड. आई मीन इट्स अ ग्रेट थिंग.
लेकिन अगर वही टीचर एक बिल्कुल मिनिमल एक अंडरस्टैंडिंग लेके बैठा है ना उस सब्जेक्ट की, तो वहाँ वो बिल्कुल रूइन कर रहा है, जनरेशन तबाह हो रही है पूरी. So there was this person whose comment I started talking about initially. When I saw that comment, I literally, I just thought, I mean, my head started spinning. I didn't understand कि यार मतलब एक तो इतनी अजीब सी बात, इतनी एक मतलब it's such a heavy thing that she is saying, and that too so casually as if it doesn't even matter. Like what? मतलब she said कि I can teach anything but maths is my expertise. There was this somewhat sensible human out there who actually commented. I mean like उनको सारे criticism मिला काफ़ी ज़्यादा उस पोस्ट के नीचे. उन्होंने कहा साहब ने कि पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अगर सारे सब्जेक्ट्स पे आपका मुकम्मल अबूर हासिल हो 100% और आप जो है ना मतलब सब पढ़ा सकें, क्योंकि इंसान की महारत किसी एक या दो चीज़ों में हो सकती है, इतनी सारी चीज़ों में एक साथ नहीं. 10-12 सब्जेक्ट्स एक बंदा अकेला नहीं कवर कर सकता. तो शी वॉज लाइक द जस्टिफिकेशन दैट शी केम अप विद वॉज सो अपीलिंग, इट ब्लू माई माइंड लिटरली. शी सेड कि जब एक बच्चा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है तो एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा क्यों नहीं सकता. सो नाउ हाउ लाइक इमेच्योर इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल मतलब हमारा जो IQ लेवल है लोगों का वो कहाँ जा रहा है. हाउ इमेच्योर ऑफ हर वॉज दैट व्हेन शी सेड कि जब एक बच्चा सब पढ़ लेता है तो एक एजुकेटर क्यों नहीं है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने में. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन सर ने उनके बाद उनको ये कहा कि ये बहुत ही अनजस्टिफाइड आपने एक वियर्ड सा रीज़न दिया है. ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने कभी ये देखा है कि एक बच्चा अगर है तो जाहिर सी बात है वो एक स्टूडेंट सारे के सारे सब्जेक्ट्स अगर पढ़ भी रहा है 10 से 12, उसका इंटरेस्ट हर चीज़ में डेवलप नहीं होता है इतना आराम से, और ना वो सब में टॉप कर लेता है, ना वो सब में फ्लाइंग कलर्स से पास हो जाता है. दैट स्टूडेंट अगेन वुड हैव अ सर्टेन सेट ऑफ इंटरेस्ट. उसका स्किल सेट, उसकी एक इंक्लिनेशन, उसका इंटरेस्ट जो है वो सर्टेन एरियाज में डेवलप होगा, ना कि मतलब सारे 12 या 10 के 10 सब्जेक्ट्स के अंदर. तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैजुअली डू आर पीपल टेक दीज थिंग्स. या मतलब हमारे स्कूल वाले हो गए, मैनेजमेंट वाले भी मतलब ये चीज़ों को शायद कंसिडर नहीं करते. I mean anybody who feels like coming into the teaching industry just like stands up and enters in it as if it's something so like I mean कोई मीगर सा काम है, कुछ है ही नहीं, it's easy money. ये जो हमारे पाकिस्तानियों का, देसियों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कोई नौकरी नहीं मिल रही टीचिंग में आ जाओ, मतलब इंटर क्या फारिग बैठे हैं टाइम पास करने हैं टीचिंग में आ जाओ, मतलब जल्दी 2:30 बजे छुट्टी चाहिए, घर पे जल्दी पहुंच जाएंगे स्कूल से, और कॉर्पोरेट वाले तो आपको बिठा के 9 बजे तक पकड़ के रखेंगे, तो आप है ना टीचिंग में आ जाओ. मतलब आपको पॉकेट मनी चाहिए, टीचिंग में आ जाओ. आपको अपनी स्टडीज फाइनेंस करनी है, टीचिंग अगेन. लाइक मतलब टीचिंग इंडस्ट्री ना हो गई कोई मतलब अम्यूजमेंट पार्क हो गया, सैर सपाटे की जगह हो गई, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के लाइक डायरेक्ट डुबकी लगा लेता है इंडस्ट्री में. आई मीन इट रियली हर्ट्स दोज पैशनेट एजुकेटर्स जो कुछ अपने अंदर एक हु हैव दैट ट्रू तशनगी, हु हैव दैट पैशन फॉर दिस इंडस्ट्री, फॉर द किड्स. आई मीन सीरियसली मतलब हम इस लाइन में आए हैं, हम डे इन एंड डे आउट अपनी जाने लगा रहे हैं, हम इतने सालों से बैठे हुए हैं, मोर देन अ डेकेड. We are like doing everything that's humanly possible for us to bring out the best from our kids, our students, to provide them with the best of everything. At least हम हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं. और ऐसे लोग जिनको कुछ समझ नहीं आता, जिनका कोई टीचिंग का बैकग्राउंड नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपना पास टाइम, अपनी हॉबी समझ के टीचिंग में आ जाते हैं. Just because they think, yes sir, you're saying that short working hours is one of the attraction for many. This is, but then again वही लोग होते हैं जिनको ज़रा सा काम या लेट सेटिंग आ जाए तो सबसे पहले रोना वही डालते हैं जाके प्लेटफॉर्म्स पे, और स्कूल्स के नाम ले लेके उनको लगता है हम टार्निश करना शुरू कर देंगे. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डुअल मेंटालिटी, दिस वियर्ड एक मेंटल मेकअप के प्रॉब्लम क्या है लोगों की और ऐसे लोगों की. एंड इट्स रियली सो सैड कि मतलब हमारे हेड्स जो हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट्स जो हैं, तो दे ऑल्सो एट टाइम्स जस्ट आई मीन सॉरी टू से फेल टू अंडरस्टैंड दिस आई मीन थिंग. वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. अभी कल परसों मैंने एक पोस्ट पढ़ी एक जगह, अगेन ऑन वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर ये था कि सोशियोलॉजी का और अंग्रेजी का टीचर चाहिए. मतलब इट्स अ कॉम्बो. आई मीन हु मेड दिस कॉम्बो? कोई मतलब मैकडोनल्ड की कोई डील चल रही है, KFC की डील है कि आप कॉम्बो बता रहे हैं? भाई मतलब खुदा का खौफ करें ना. एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाने आ रहा है. आप अगर कॉम्बो का फतवा जारी कर रहे हैं कि आई मीन आप ये हमें कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कॉम्बिनेशन का कोई लॉजिक भी तो बने.
I hope that all of the audience, whoever is watching me right now, whoever is hearing or whoever would hear, would agree to me on this point to quite an extent. नस्लें तबाह हो रही हैं भाई हमारी, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं इस तरह, हम नहीं वो प्रॉपर प्रोवाइड कर पाते नॉलेज व एजुकेशन जो बच्चों का हक है। फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्ज़ाम्स में बच्चे जो है वो हमारे बिल्कुल कोई 100% हो, और मतलब पता नहीं वो आगे जाके बेचारे देर जस्ट सो लाइक अजीब, एक इतना ज़्यादा उनका पूरा निज़ाम ही धर्म भरम होता है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं। वो जो अजीब ऐसे ऐसे लोगों ने माशाल्लाह मिलके जो खिचड़ी पकाई होती है लिटरली, जो मतलब उनको खुद कुछ नहीं आता वो पढ़ाते हैं। I believe that a lot of you might have heard this thing. एक सेकेंड में Sarwat said कि I was going to write just schools, then thought maybe the big systems may have changed. Sarwat dear, big or not big, not so big. Again you know, कहीं ना ये आवाम की एक तो मजबूरी से, कैफियत से फ़ायदा उठाना, दूसरा एक लिमिटेड बजट में टारगेट करना, ये वाली जो मतलब जो हरकतें हैं ना, ये दिस इज़ समथिंग दैट्स यू नो वेरी वेरी यू नो येस टू सेव द टीचर्स पे, दिस इज़ हैपनिंग अ लॉट। मतलब वो जो हम जिसे कहते हैं यू नो टू लाइक किल अ बर्ड विद द सेम, किल 2 birds विद द सेम स्टोन। सो वही है ना, एक तीर से 2-3 शिकार वाला मामला। उनका बस चले तो वो तो एक टीचर को मतलब 12 सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए रख ले एक ही पे में, अपना बजट सेव करने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि व्हाट आर दे इवन डूइंग टू द किड्स। I really don't understand. I just saw this, person who I said, एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कल या आज सुबह मैंने कोई उनका कमेंट पढ़ा अगेन ऑन द वेरी सेम प्लेटफॉर्म, क्योंकि कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ मतलब कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में पॉजिटिवली, या वो मतलब कोई ऐसा कोई पता नहीं ऐसी कोई जगह का किरदार अदा कर रहे हैं। आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, लाइक सीरियसली, कि लोग अपने दुखड़े सुनाते रहते हैं वहाँ के सारा टाइम। मतलब ये हो गया हमारे साथ, ये हो गया, हमें मतलब ये मसला हो गया, हमें स्कूल में इसने ये बोल दिया, कोई बात हुई नहीं हुई, आके अपने मसले, जैसे कि मतलब पता नहीं माइका हो गया, स्कूल का कोई टीचिंग प्लेटफॉर्म नहीं हुआ, कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं हुआ, आके हर वक्त अपने रोने डाले हुए होते हैं उन लोगों ने वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मतलब हमें ओवरऑल एज ए कम्युनिटी, अगर एजुकेटर्स की कम्युनिटी भी है, अगर हम लोग एजुकेटर हैं, हमारे शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है और वो सारे एजुकेटर्स कहते हैं और इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि वी आर एजुकेटर्स, वी आर द नेशन बिल्डर्स। हम पे जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, और हम इतना लेम और इतना कैजुअल एटीट्यूड को हम वी कैन नॉट जस्ट लेट इट स्लाइड बाय। There has to be a proper check and balance in the industry from the side of the heads as well as those admins and moderators who are running all such groups for a common cause or for a common goal to actually bring a change in the community or to help people find good jobs or anything. I have seen these kind of silly comments and posts on like multiple groups. Literally I don't understand that कि मतलब यार what are the people doing, मतलब are we this casual with this responsibility कि हमने टीचिंग को इतना कोई जोक समझा हुआ है। टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। लाइक सीरियसली सर, मतलब शोभा तो वो अपनी जगह है बट इट्स मोर ऑफ अ पैशन। मैंने वही कहा ना, जिनको अंदर से इस चीज़ की तशनगी होती है। मतलब टीचर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ये एक बहुत फेमस कोटेशन है। आई डोंट रियली रिमेंबर द कोटेस्ट बट येस इट्स अ कोटेशन राइट, कि टीचर्स आर बॉर्न, देयर जस्ट नॉट मेड। ठीक है, आई एग्री कि जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट के काम होते हैं। आई माई सेल्फ एम अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज माशाल्लाह, बट द पॉइंट इज़ दैट कि स्टिल अंदर से वो शौक भी तो हो ना। मतलब क्या फ़ायदा आपको, आप 50 डिग्रियाँ ले लें, आप 100 कोर्सेज में इनरोल्ड हो जाएं, आपके ऊपर स्कूल वाले आपको 10 ट्रेनिंग्स में बिठा दें ज़बरदस्ती, बट अगैन आपके अंदर से तो वही है ना कि यार मैंने तो जस्ट अपने बिल पे करने हैं। I just want to feed my kids and I just want to pay my bills and get my ज़रूरियात के expenditure done. And then again that's the only thing that's in their head, that they just have to get away with it, whereas that shouldn't be the case. It's very ironic. I just read this post today in the morning or pata nahi somewhat at night, that there was this lady, she literally said कि I'm a doctor by profession, I've studied medicine, I've done my MBBS, but now I'm looking for a teaching job. Like wow, amazing, right? A doctor looking for a teaching job. Can you people imagine? MBBS किया है मैंने, रेजिडेंसी कर ली है, तो अब I just want to go for teaching until मैं अपनी यूनिवर्सिटी की या उसकी शाम के मास्टर्स की फी निकाल लूँ, अपनी पे निकाल लूँ टीचिंग से।
I mean, I just couldn't wrap that weird statement around my head around that कि भाई मतलब अब डॉक्टर इंजीनियर्स माशाल्लाह जिसका दिल चाहता है वैसे वो इतने सालों से तो यही चल रहा है, वो क्लासरूम आके खड़े हो जाते हैं. वो अलग बात है कि उनको समझ तो कुछ आता नहीं है कि करवाना क्या है, बिकॉज अगेन 21st सेंचुरी स्किल्स, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना, मेथडोलॉजी तो पेडागोजीज हमारी सारी मॉडर्न डे टेक्निक्स के हिसाब से, हमारा करिकुलम क्या है, मतलब कंटेंट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को लेकर चलना है, साइकोलॉजिकली बच्चे को कैसे समझाना है, ये सारी बातें एक ट्रू एक एजुकेटर, एक पैशनेट एजुकेटर, टीचर ही कर सकता है. मतलब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और आई मीन लाइक एनीबडी फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर जिनको एजुकेशन का अलिफ बे नहीं पता, वो आके हमें बताएंगे, एजुकेटर्स को बताएंगे, या वो आके हमारी इंडस्ट्री में यानी कि काम करेंगे लाइक लिटरली. और मतलब मज़े की बात तो ये है कि व्हाट आर द हेड्स इवन डूइंग के ऐसे लोग आ भी रहे हैं इंडस्ट्री में और उनको वेलकम भी किया जा रहा है. अब बाद में बच्चों का बेड़ा भी गड़क हो रहा है और फिर हम बोलते हैं कि मतलब कहाँ जा रही है हमारी इंडस्ट्री. सो this is something that's really thought provoking, very thought stimulating. We should be taking care of this thing and our heads should be, you know, taking these kind of facts into notice, into consideration, and only those people who are having some legitimate, you know, education related degree or at least that sound enough knowledge, that passion कि आया वो बच्चों के साथ उस तरह से रैपोर्ट डेवलप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते. वो जो डॉक्टर वाली बात थी, अगर यही रिवर्स साइकोलॉजी हम चला दें और एक एजुकेटर हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाए हाथों में इंस्ट्रूमेंट्स और मतलब अपने सारे इक्विपमेंट पकड़ के, पेशेंट का क्या बनेगा? वी ऑल नो नथिंग. अल्लाह कोई प्यारा बना है उस लैंड में जाके. तो अगर वही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उठ के क्लासरूम में आते तो वो कितना बेड़ा गर्क करते हैं हमारे बच्चों का. Somebody who's a medicine student who has just read biology does not claim that they can actually teach biology. I mean on that level, उस तरह से जैसे पढ़ाने का हक अदा होता है, जिस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं, जो एक एक्चुअली टीचर की अपनी एक कुछ बैग ऑफ ट्रिक्स होती है, एक कला होती है, एक टीचिंग की एक अदा होती है. टीचिंग इज एन आर्ट एंड नॉट एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट. that's very well said and it's something that's very, I mean, बड़ी एक एक्सपोनेंशियल, एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बात है ये. लाइक आई मीन वी आई डोंट नो हम कहाँ ये बातें क्यों नहीं कंसिडर कर रहे होते जब ये इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैं. इनफ्लक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ मेड इट ईजी. यार अनएम्प्लॉयमेंट का मकसद कोई मतलब टीचिंग इज़ लाइक अगेन यार एक इंडस्ट्री वो तो नहीं है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो बस एवरी सिंगल पर्सन जिसका दिल चाहेगा वो टीचिंग में ही आ जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ अदर जॉब्स, ऑनलाइन काम है, लेकिन उनको लगता है कि इट्स ईजी मनी. बहुत ऐसे कई लोग देखे हैं जो इतने आराम से, इतनी ऑडेसिटी होती है उनमें, वो बोल देते हैं कि यू नो टीचिंग इज़ वेरी सिंपल. करना ही क्या होता है, खाली बस सिलेबस तो ख़त्म कराना होता है, खाली करिकुलम में जो लिखा होता है उसको पढ़ा के बस बच्चों के टेस्ट ही तो लेने होते हैं. तो मतलब ये इतना खाली और इतना सिंपल, और इतना तो कभी मुझे तो इन 14 सालों में इतना खाली और इतना सिंपल तो टीचिंग में कुछ नज़र नहीं आया. इनफैक्ट एवरी सिंगल डे टिल नाउ आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एंड देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग. Because this thing never stops. I mean, ये तो it's something so natural that will continue to happen till the end of time. I don't really understand कि इतना कैजुअल एटीट्यूड रख के मतलब ये लोग जो इंडस्ट्री में आते हैं, फिर मतलब वो थोड़ा सा भी ये नहीं सोचते कि यार जब उन बच्चों के साथ वो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर इतना क्या इंप्रेशन जा रहा होगा. वो इंस्पायर करने की जगह डीमोटिवेट कर रहे हैं लिटरली. और वो बच्चे फिर जो है वो मतलब आगे जाके बेचारे जब उनको कुछ आएगा नहीं, उनको वो उस तरह की जॉब्स नहीं मिलेंगी क्योंकि वो स्किल्स ही डेवलप नहीं करवा सक रहे ना. मतलब एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक कॉर्पोरेट का बंदा आके हमारी इंडस्ट्री में हमारे बच्चों की स्किल्स डेवलप कैसे करवाएगा? उसको तो खुद कुछ नहीं पता कि टीचिंग के मतलब क्या है, सर पैर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. देयर वाज लाइक आई ऑल्सो नीड सम टेक अप सब कमेंट साइड बाय साइड. Sarvad, I just missed out your comment. You said something. Let me just get to it. Give me a minute, please. Said that we teachers have been named service providers, so it's enough to understand the grim situation we have to go through. Very true, very true. Influx of mohalla schools more than decades ago started this. Yes, because we have all studied science. Today a person posted that he's looking for a male tutor and women were responding. This is the level of our education. Exactly, very true. ये तो बहुत होता है. मतलब हमारे टीचर्स के अंदर सॉरी टू से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ये जो ऐसे ही मतलब वो वालों की मैं बात कर रही हूँ जो मुंह उठा के इंडस्ट्री में आ जाते हैं ना, मतलब नानी माँ का घर समझ के. तो उनका मतलब ये लिटरली हाल है कि अगर एक एड पोस्ट की गई है टीचिंग के बारे में कि इट्स अ वेकेंसी फॉर लाइक टीचर्स एंड यू नो मतलब लाइक सो इन सो सब्जेक्ट, या पर्सन इज एक्चुअली यू नो
asking for like a tuition for themselves. मतलब वो बोल रहे हैं कि हम अपने लिए वो ऐड लगा रहे हैं कि like I am a tutor and I want to like you know teach so and so subject. नीचे कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे होते हैं कि I am interested. भाई वो नौकरी नहीं पोस्ट कर रहा, वो अपने लिए बता रहा है कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं ये पढ़ा सकता हूँ, ये पढ़ा सकती हूँ. मतलब आई रियली कैन नॉट अगेन जस्ट फिगर दिस थिंग आउट कि हमारी इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्किल्स इतनी वीक हैं. हमें एक बेसिक सा टेक्स्ट तो हम कॉम्प्रीहेंड कर नहीं सकते कि बंदा अयान नौकरी की ऐड पोस्ट कर रहा है या वो अपने बारे में कुछ मतलब बता रहा है कि वो पढ़ा सकता है या पढ़ा सकती है. और फिर माशाल्लाह हमें ऐसे ही लोग क्लासरूम्स को मतलब यानी कि मैनेज करते हुए नज़र आते हैं. ऐसी ऐसी औरतें जो जिनके अंदर पेशेंस लेवल वैसे ही नहीं होता और वो घर के कामों से फ्रस्ट्रेटेड होके या बस वो एक अजीब मतलब कि उनको होता है कि अपने जैसे ऐसे बिल्स पे करने, ये काम है वो काम है, टीचिंग इंडस्ट्री में उठ के आ जाते हैं, हर वक्त सर पे सवार उनका घर, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनकी सास, ये सब रहता है. क्लासरूम में बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं. बच्चे ने बेचारे ने कुछ हल्का सा कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं कि मतलब चीखना चिल्लाना, मतलब अगर कोई तो ऐसे होते हैं बिल्कुल कॉर्पोरल पनिशमेंट. So like what is this behavior? I mean this is not justifiable or I mean acceptable. It's just like zero tolerance is there for that, right? Be it नया ज़माना और पुराना ज़माना. I've seen these kind of like you know I mean like stupid debates, इंतहाई कोई अक्ल से फारिग debates on these kind of educational platforms multiple times के वो 80s 90s का ज़माना तो बड़ा गोल्डन था. पता नहीं कौन सा गोल्डन था, मेरी तो नहीं समझ आया कि जिसमें बच्चों को मार मार के सुधारा जाता था और आजकल के बच्चों की तो तरबियत नहीं है, तो ये नहीं तो वो इतनी वो जो मतलब दैट ऑर्थोडॉक्स वाला सारा ज़माना फुल ऑफ जहालत एंड ऑल दैट यू नो आई मीन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक ज़ीरो पेशेंस के नो बडी वॉज रेडी टू ब्रेक देयर जनरेशनल साइकिल ऑफ अब्यूज़ एंड ऑल दैट साइकिल ऑफ दोज कर्सेज. वो ट्रांसमिट किए जा रहे हैं नई जनरेशन पे एंड दे आर फीलिंग सो प्राउड दैट दे यू नो बीन समथिंग सो सुपर ग्रेट एंड नाउ दे शुड बी कंटिन्यूइंग ऑल ऑफ दैट एज अ लेगेसी इन द स्टूडेंट्स दैट आर देयर. तो अगेन अगर वही वाली बात होगी कि सर पे प्रेशर होगा, टीचिंग के लिए पैशन नहीं होगा, स्टूडेंट साइकोलॉजी से वाकिफ नहीं होंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं पता होगी, तो यही करेंगे वो क्लासरूम में बैठ के. वो अपनी लिमिटेड पी साइज्ड अपने हेड और इतनी सी लिमिटेड सोच को लेके वो लगाएंगे और नीम हकीम तो ऐसे ही खतरा है जाने. अ लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग. समबडी राइटली सेड दैट बिकॉज इट इज. वी हैव tunnel vision. Very true. We have a very limited vision. Read what we want just like we only listen to what we want to hear. बिल्कुल we actually hear to कहते हैं ना not to respond but to retaliate. हम अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं समझ रहे होते कोई बात को, हम सुनते हैं इसलिए कि हम अभी रिटेलिएट कैसे करेंगे, हमारा काउंटर रिएक्शन क्या आएगा उस बात पर. मतलब उन टीचर्स की तो लिटरली पकड़ पकड़ के काउंसलिंग करवाने का बहुत दिल होता है जो इस तरह की बातें करते हैं कि हमें सब आता है. एंड फिर ऊपर से दिस ट्यूशन वाला कल्चर जो एक होता है. आई एम नॉट सेइंग giving tuitions is something wrong or that shouldn't be there. Of course it should be there. और एक नॉर्मल सी बात है, हम खुद भी सारी उम्र हम लोगों ने साथ ट्यूटरिंग में बच्चों को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की है और हमने पढ़ाया भी है एज एजुकेटर्स, अदारों में भी कर रहे हैं. बट ट्यूशन वाली जो एक वो वाला जो ट्यूशन की बाजी वाला कॉन्सेप्ट है, जिनको खुद कुछ नहीं आता, खुद वो मैट्रिक पास हैं और पढ़ा वो माशाल्लाह इंटर के बच्चे भी रही हैं, बीकॉम के भी रही हैं, सीनियर लेवल भी रही हैं, ओ लेवल भी रही हैं, ए लेवल भी रही हैं, वो क्या करवा रहे हैं. मतलब literally they just know nothing themselves. They have zero idea or understanding about the subject you know in general and they're just making the students do rote learning. Again वही ratification चल रहे. There's just no such proper you know learning that's happening. Like all these things, ये जो अब एजुकेशन लाइसेंस के ऊपर जो बहुत सारे लोगों को हमारा बड़ा दर्द उठाए काफ़ी टाइम से, ये जो कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ये बात हुई थी कि एजुकेशनल लाइसेंस अब बात हो रही है, द डिबेट इज़ कॉन्स्टेंटली यू नो गोइंग ऑन कि बीएड कंपलसरी होता जा रहा है दिन ब दिन और टीचर्स के लिए, और आने वाले वक्तों में काफ़ी हद तक ये मुमकिन है कि विदाउट बीएड या एमएड किया हुआ बंदा एजुकेशन इंडस्ट्री में अलाउ नहीं होगा. तो हालांकि अगर हम एजुकेटर की बात करें जो एक पैशनेट एजुकेटर है, एक टीचर है, जो वो उसके अंदर तो ऑलरेडी इतना डाई हार्ड पैशन है, वो सारी वो खुद ही है, वो विल है, वो जज्बा है, वो अपने सब्जेक्ट से उसको इतना मतलब मोहब्बत है, वो समझता है उसकी रूह को, तो वो पढ़ा रहा है ना. ऐसे लोग तो अज़ल से पढ़ाते आ रहे हैं, सदियों से पढ़ाते आ रहे हैं. लेकिन अब उन लोगों की वजह से जिनका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जिन्हें कुछ नहीं आता जाता और हमारी इंडस्ट्री को कंटामिनेट कर रहे हैं वो लोग आकर बिला वजह का, कि हमारे क्लासरूम्स का माहौल ख़राब हो रहा है, हमारे बच्चे बेचारे यानी कि इतने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जनरेशन पे इतना बुरा इम्पैक्ट आ रहा है, उनकी वजह से अब ये टीचिंग लाइसेंस का मसला सबको भुगतना पड़ेगा कि वेदर लाइक यू नो दे आर अ सुपर पैशनेट एजुकेटर और नॉट, no matter how much like knowledge are they equipped with in their subject,
नो मैटर वॉट एवर दे नो अबाउट देयर ओन सब्जेक्ट, इन्स एंड आउट्स उन्हें सब क्यों ना पता हो, उन्हें अब बीएड और एमएड उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा, होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पीपल जिन्होंने आके माहौल खराब किया हुआ इंडस्ट्री का, बिकॉज दे रियली डोंट नो। और बीएड की भी आयरनी बल्कि यही है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सब कुछ लेक्चर बेस्ड होता है। आई माई सेल्फ एम हालांकि अबाउट टू ऑप्ट फॉर इट soon enough inshallah, but the people who I have taken information and updates from and inquired from, तो उनसे तो यही सुना है, लेक्चर चलते हैं पूरा टाइम, लेक्चर लेक्चर लेक्चर। एक्टिविटीज़ हम हमारी वो लैकिंग होती हैं, वो चीज़ें बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स भी हमारे कुछ कराची में ही, इनफैक्ट लेट अलोन पाकिस्तान, कराची में ही मौजूद हैं जो बीएड और एमएड क्वालिफाई कर रहे हैं टीचर्स को विदाउट ऑन फील्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिस। नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पे किसी का ऑन रिकॉर्ड, एज आई ऑलवेज से, but people can do their own homework and find out, or many of you must already know. Sorry for the traffic का inconvenience from the background. बहुत सो को आपको पता होगा शायद, जो सीनियर अथॉरिटी इस वक्त बैठी मुझे सुन रही है, जो सुनेंगे, जो इस वक्त माशाल्लाह बहुत से ऐसे बहुत वेल लर्नड लोग हैं। आई एम जस्ट ओनली हैविंग 14 years of experience माशाल्लाह। आई कैन सी दोज कॉन्टैक्ट्स हु आर हैविंग 24, 22, 30+ years of experience who are watching me right now। आप लोग एग्री करेंगे इस बात से, आपको पता होगा कि बहुत सारी कुछ ऐसे अदारे हैं इस वक्त कराची में जो बीएड एमएड की लिटरली डिग्रीज अवॉर्ड कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली लेटिंग आस्किंग देयर टीचर्स और मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर देम टू हैव दीज काइंड ऑफ ऑन फील्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड ट्रेनिंग्स, वो जो पूरे लेसन्स होते हैं हमारे एंड में जाकर के, जिससे पहले डिग्री मिलती है। तो व्हेन दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट, जब वो पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, उनका वो पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक उनकी हुई नहीं है, दैट लर्निंग डिडंट टेक प्लेस, दैट ट्रेनिंग डिडंट टेक प्लेस, सो कैसे वो टीचिंग में आ जाते हैं। और ऑडेसिटी इज़ लाइक, मतलब बड़ी, मुझे तो आई एम ऑलवेज वाउड बाय देयर ऑडेसिटी। इतनी ऑडेसिटी लाते कहाँ से हैं ये लोग, मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, या सोचते नहीं है इंटरव्यूज़ के लिए डेमोज में जाने से पहले कि यार हम क्या कहेंगे। बहुत सारे ऐसे आजकल कॉर्पोरेट लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स बैठ के, मतलब जस्ट टू सीक अटेंशन एंड ग्रैब ऑडियंस एंड ब्रिंग ट्रैफिक टू देयर प्लेटफॉर्म्स, ज़बरदस्ती का बाय पोस्टिंग वन थिंग और दी अदर, या कुछ ना कुछ ला रहे हैं, कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं। मतलब आपकी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मुझे समझ में नहीं आता, उनकी कोई उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या मतलब उनको वहाँ पे कोई मसला हो गया है, क्या हो गया है कि वो टीचिंग इंडस्ट्री की जान के पीछे पड़ गए, हाथ पाँव धो गए कि यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए तबाही मचाने के लिए वो आए हुए हैं। हाउ कैन एनीबडी हु हैज़ डन लाइक, मतलब ACCA, CA या फिर MBA टाइप की चीज़ें, कोई भी ऐसी डिग्री जो वो कॉर्पोरेट और टिपिकल बिजनेस के लिए करते हैं, वो अकाउंटेंसी की फील्ड उन्हें संभालनी चाहिए, या इंजीनियर्स को ऑन फील्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए, डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में होना चाहिए। हाउ कैन ऑल दीज प्रोफेशंस कम एंड जस्ट डू व्हाट दे लाइक इन टीचिंग? I mean, teaching is that profession which creates all these other professions, right? And now those professions that are actually created by teaching, the teachers themselves are coming and telling the teachers as actually becoming their colleagues, and like just moving along in the industry as if it's just some sort of very casual job or some pastime. Isn't that ironic? सब्जेक्ट हेड्स वो बने हुए होते हैं जिनको सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। अगर वो किसी कोई सब्जेक्ट हेड, मुझे सारी उम्र अभी तक, जितने अरसे तक मैंने अभी तक टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, कई बार ऐसा टाइम आया है लाइक माई कलीग्स हैव मोटिवेटेड मी अ लॉट, पीपल अराउंड मी, जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस कि तुम्हारी अंग्रेजी की फ्लुएंसी है और तुम्हारा जो है वो लैंग्वेज स्किल्स तुम्हारी अपग्रेडेड है, और जस्ट बिकॉज तुम अंग्रेजी का तुम्हारा एक डोमेन है, तो वाई डोंट यू अप्लाई फॉर कोऑर्डिनेटर की पोजीशन या सब्जेक्ट हेड की पोजीशन एंड दिस दैट। मैंने हमेशा ये कहा है, देखो भाई बात सुनो, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है 6 डिजिट सैलरी और ये और वो और इतनी बड़ी हॉट सीट मिलना, और काइंड ऑफ लाइक गोइंग टू हैव ऑल दैट स्वैग, वॉक अराउंड लाइक अ बॉस एंड ऑल लीडर वगैरह व्हाटसोएवर, बट मुझे क्या सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी जो उस हेड की जिम्मेदारी होनी है उस कुर्सी पे बैठ के? उसका मकसद खाली ये तो नहीं है ना कि भाई 1-1.5 लाख रुपए लेके जेब में डालना है। अगर एक सब्जेक्ट हेड है, अगर एक मेन सेक्शन हेड है, कोई भी है किसी भी अदारे का, तो उस बंदे को फिर उसके नीचे जो 10 से 12 सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो टीचर्स उनके सुपरविजन के अंडर आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं करिकुलम से बहुत अच्छी वाकिफियत होनी चाहिए। And the biggest irony that we see is that 99% of the time, or in 90% of the cases, we have those people sitting on those higher authorities who themselves know nothing. So many times.
Like it's a general perspective that I've experienced in various places, either by hearing somebody else's subjective experience, reading something, or actually being a part of certain places myself in the past, because I've been at quite a few places now. खाली एक दो जगहों पे तो मैंने कोई काम नहीं किया ना, multiple जगहों पे I've been in these like 14 years of time. So the level of the lack of understanding or learning या interest I have felt या seen in these people who actually are supposed to be like true leaders or supposed to be inspiring others or igniting that change, they themselves are like just वो काम चला रहे हैं because वो burden है और बस करना है, because just they have to bear their expenses. However, some mainstream schools have achieved the pinnacle standards through, again your comment just went up, your comment missed out. It's a vicious cycle. School owners, heads, teachers and parents have practically no idea about education. Very true, they literally don't. I mean यार यही तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर वो लोग जो पैशनेट हैं भी, आप देखें ना उनके लिए कितना चैलेंजिंग हो गया है. हालांकि जो शुरू से इस चीज़ में हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो शायक हैं, एल को शौक है यार, जिन्हें पता है कि मतलब जिनका तो शुरू से अंदर से ही हमेशा ये था कि यार आई वांट टू बिकम एन एजुकेटर, आई वांट टू बिकम दैट चेंज ब्रिंगर, आई वांट टू ब्रिंग आउट रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी, डू समथिंग. मतलब every other person is just calling themselves a master of anything, like just about anything these days. I really don't understand कि why do they do that. मतलब मैं अगर कभी जब हम होमवर्क करते हैं, अपना टीचर जो खुद अपनी स्टडी करता है, पहले बच्चे को कोई काम करवाने से पहले, क्लास में एग्जीक्यूट करने से पहले, हमेशा कोशिश रही है आज तक कि जितना पढ़ाऊँ, जो पढ़ाऊँ, एटलीस्ट उस पर मेरी इतना कमांड हो मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो कि हक अदा हो. और मेरे हिसाब से मैंने हमेशा ना बहुत पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह किया है ये काम. क्योंकि सबसे पहले तो मेरे दिल में जो एक ख्याल आता है या डर आता है ना, वो अल्लाह की ज़ात का होता है. हेड्स वेड्स तो बहुत बात की बात होता है, क्योंकि हेड्स भी हैं तो इंसान अल्लाह के ही बंदे हैं ना. सबसे पहले इंसान खौफ खुदा रखता है कि यार टीचर होना इज़ जस्ट लाइक बीइंग अ पेरेंट. जैसे अगर औलाद आजमाइश है ना इंसान के लिए, मुसलमान के लिए, कि उसका भी हिसाब होगा रोज़े क़यामत कि आपने उसके साथ क्या किया जब आपको औलाद की नेमत से नवाजा गया. तो उसी तरीके से टीचर्स के लिए वो उसके स्टूडेंट्स का तबका इतना सारा, वो बैचेस के बैचेस भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है. जब हमारे हाथों में इतने सारे मासूम बच्चों का फ्यूचर होता है ना, तो ये बहुत हमें अपने दिल के अंदर झांक के सोचना चाहिए, ये बात देखना चाहिए, हमारे ज़मीर से सवाल करना चाहिए कि हमसे अल्लाह ना करे कल को कुछ गलत हो गया ना इनके साथ, तो सबसे पहले हमें अल्लाह को जवाब देना है. हेड्स और पेरेंट्स वो तो फिर दुनिया की कहानी है, बात की बात है. लोग जिस बेशर्मी से आजकल, तो मैं एक अरसे से नोट कर रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, मेरा बहुत खून भी खोलता है, बहुत दिल भी दुखता है कि यार क्या मजाक बनाया हुआ है हमारी इंडस्ट्री को. मतलब जिसका दिल चाह रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि कल को तो मेड्स, रिक्शा वाला, चौकीदार, एनीबडी कैन जस्ट गेट अप एंड कम इन द इंडस्ट्री कि चलो भाई कुछ और नहीं मिल रहा तो टीचिंग इंडस्ट्री में चलते हैं, बिकॉज दैट्स लाइक एन ओपन धर्मशाला काइंड ऑफ अ प्लेस, एनीबडी कैन गो एंड डू एनीथिंग, लाइक नो अकाउंटेबिलिटी, नो चेक एंड बैलेंस. सॉरी फॉर द रेज, आई थिंक दैट कैन बी फेल्ट, बिकॉज अगेन वही बात है, जो पैशनेट लोग होते हैं उनका दिल दुखता है, उनसे नहीं बर्दाश्त होता जब वो देखते हैं उनकी इंडस्ट्री में कितना तमाशा चल रहा है. बाहर मुल्कों में जाके ये लोग 2 सेकंड नहीं खड़े हो सकते, वो वाले जो पाकिस्तान में इतने शेर बन के घूमते हैं टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर, जब उन्हें कुछ नहीं आता. अंग्रेजी में 2 जुमले लिखना नहीं आएंगे, अंग्रेजी के हेड बने हुए होंगे, 2 बातें इंटरव्यू में बोलना नहीं आएंगी, वो पढ़ा रहे होंगे, एमफिल अंग्रेजी के अंदर होगा, PhD अंग्रेजी में होगा. जब उनसे इंटरव्यू में 2 बातें की जाए, उनके बायोडाटा से हट के वो जवाब नहीं दे पाते, उनका अटकना और उनका स्टैमरिंग शुरू हो जाता है. तो आपकी फिर लिंग्विस्टिक्स की या आपकी लिटरेचर की एमफिल और PhD का ऐसा स्कूल वाले क्या करेंगे, अदारे वाले फिर उन डिग्रीज का क्या करेंगे जब बंदे को सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं आता, उससे बात नहीं की जा सकती, और फिर वो वैसे लोग आके इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए. आई मीन लिटरली लाइक यही वही वाली बात है ना कि यही एज आई सेड कि लाइक वो टाइम मुझे तो दूर नहीं लगता, बड़ा खौफ आता है कि व्हेन मेड्स और एनीबडी कैन जस्ट लाइक स्टैंड अप एंड जंप इन द इंडस्ट्री, और लाइक दीज एक्टर्स और सिंगर्स एंड डांसर्स जब उनका दिल चाहेगा अपनी इंडस्ट्री से फ्लेवर चेंज करने का, बोर हो जाएंगे तो टीचिंग इंडस्ट्री के दरवाजे तो वो अपने लिए बड़े आराम से खुले समझेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं पूछता. कोई चंद अदारे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इस बात को लेके बहुत स्पेक्यूलेट करते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों की, अपने टीचर्स की ट्रेनिंग पे तरजीह देते हैं. आधी से ज़्यादा जगहों पे तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं होती. लाइक आई वुड शेयर दिस वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माइन विद यू पीपल हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, कि
I have been, mashallah, doing a lot of professional development courses these days, and I would really like to pay huge thanks and immense love and respect to my lovely trainer Ms. Saima Imran, the director of Teach Learning Dimension over here, कि जिनसे जुड़ने के बाद मेरे अपनी कितनी ज़्यादा एक मतलब मुझे कितना ज़्यादा यानी कि एक मतलब अवेकनिंग हुई है मेरी खुद की इन चीज़ों को लेके, या एक इनलाइटनमेंट हुई है. मतलब मैं कुछ दिनों पहले मेरे ऊपर एकदम से एक एक्सप्लोजन, एक मतलब एक बड़ा समझ आया, मेरे सामने एक चीज़ हुई कि व्हेन वी वर गोइंग थ्रू दीज हमारे कोर्सेज के मतलब सेशंस, एंड व्हेन आई यू नो मेड अ लेसन प्लान एज आई वाज रिक्वायर्ड टू. सो आई मेड अ लेसन प्लान, आई मेड इट वेरी हैप्पीली कि भाई मेरा तो अंग्रेज़ी मैंने पढ़ाया है तो ज़ाहिर अंग्रेज़ी आती है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक हद तक उबूर है उस चीज़ पे और मेरा डोमेन है, तो व्हाई नॉट. आई यूज्ड ऑल दोज जो हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारा कुछ है, मैंने बना के दे दिया. जब जैसे ही उन्होंने चेक किया ऑब्जेक्टिव्स में ही गलतियां निकली और इतने मसले, और लाइक शी मतलब शी सेड कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शी पॉइंटेड आउट विच आई वॉज नेवर टोल्ड बाय एनी ऑफ द फॉर्मर पीपल हु आई वर्कड विद इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस. मेरी वो 5 दिन और वो 5 रातें मैं जितना मतलब डिसअपॉइंटेड रही हूँ, डीमोटिवेटेड रही हूँ, मैं जितना हर्ट रही हूँ और जितना मैं रोई हूँ ना, लाइक आई कैन नॉट यू नो इवन बिगेन टू टेल ऑल दैट. ये नहीं कि मुझे उनसे कुछ नया पता चला. आई वॉज ग्रेटफुल. आई कैन नेवर बी थैंकफुल इनफ के अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि फाइनली आई लैंडेड इन द हैंड्स ऑफ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन माशाल्लाह, जो टीचिंग इंडस्ट्री के एक एक मतलब कहते हैं ना उनसर से वाकिफ़ है कि जिस किस्म के तमाशे हमारी इंडस्ट्री में बैठ के होते हैं कि हायर तो इंसान को कर लिया जाता है उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी एबिलिटी, उसकी बोलने की, अंग्रेज़ी फरफर बोलने की स्किल्स पे, बट उसके बेचारे के साथ कितना गलत हो जाता है, कितना मसला हो जाता है कि उसको सिखाने वाला, उसको गाइड करने वाला, उसको ठीक करने वाला कोई नहीं होता. कोई उसको नहीं बताता कि देखो भाई बेटा तुम्हारे प्लान्स में ये नहीं ये मसले हैं, या ये नहीं ये चीज़ है, या इस तरह नहीं इस तरह लेके चलना है. क्यों? क्योंकि हमारे उन जो बैठे हुए हैं हमारे ऊपर सुपरवाइजर्स, उनको खुद कुछ नहीं पता कि वो चीज़ गलत है. तो वेयर आर वी इवन स्टैंडिंग एज एजुकेटर्स? मैंने रो के 5 दिन अपना तो दिमाग ख़राब किया, अपनी ट्रेनर को भी इतना बार बार एक ही बात मैंने उनसे कि आई वॉज कॉन्स्टेंटली नीडिंग मोटिवेशन कि यार 14 सालों तक मतलब क्या मैंने बैठ के मजाक किया है क्या इंडस्ट्री में? मेरा बहुत दिल दुखा था, बहुत ज़्यादा. आई कैन नॉट इवन बिगेन टू एक्सप्लेन ऑल दैट. मेरा जो सिर्फ एक ही सवाल मेरे दिल में जो आया है ना पूरा टाइम, उन बच्चों का क्या हुआ यार? पढ़ाया तो मैंने बच्चों का था ना, मैंने तो हमेशा ओनरशिप ली है. मैं तो वो इंसान हूँ जिसने सारी ज़िंदगी ओनरशिप ली है, खाली बच्चों की नहीं, अदारे की, क्लासरूम्स की, हेड्स की, जगह की, डिपार्टमेंट की. मैंने जिस दिन जिस अदारे में कदम रखा है ना, दिल से उसे अपना माना है हमेशा, बहुत ज़्यादा. आई हैव ओन्ड एवरीथिंग, आई हैव ओन्ड दैट प्लेस. मेरा मकसद खाली कभी ये नहीं होता करिकुलम में, सिलेबस में जो लिखा है उसको उठा के बोर्ड पे फेंकना है, सैलरी उठानी है, घर जाना है, बिल्स पे करने हैं. नो, आई हैव नेवर बीन दैट ह्यूमन. I've never been that, you know, I mean, short-sighted or that short-minded, या इतनी छोटी सोच मेरी कभी नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह. तो ऐसे लोग सच में तड़प जाते हैं, उनका दिल बहुत दुखता है जब उनको ये फील होता है. लेकिन वो मेरे लिए रिग्रेट नहीं था, वो आई ओपनर था. रिग्रेट तो तब होता ना जब मैंने कॉन्शियसली कोई मतलब कुछ गलत किया होता, जानते बूझते, या किसी ने मशवरे दिए होते और फिर मैंने अपनी चलाई होती. मेरे साथ तो खुद क्या क्या होता आया है, मैं तो उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही थी कि यार मतलब मैंने इतने साल लगा दिए टीचिंग इंडस्ट्री में, मुझे लग रहा था शायद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस लेवल पर हूँ अब कि अब मैं लोगों को गाइड कर सकती हूँ, या अपने सुपरविजन में मेरी अगर कोई आए तो मैं उनको यू नो कुछ आई कैन इम्पार्ट समथिंग ऑन देम, इन टू देम. बट when I get to know myself that I myself have been, I don't know, I mean, been juggling with a lot, and then again there was a lot of confusion and chaos all this while. So how would one feel? और ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे कई इंडस्ट्री के बेचारे वो वाले पैशनेट एजुकेटर्स हैं जो ये चीज़ें फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, आए हैं ये सारा दुख और दर्द. तभी वी शुड ऑल्सो कीप आवर माइंड्स आई ओपन कि हम जिस सराउंडिंग में हैं तो वो किस तरह के हम क्या सीख रहे हैं, हमें जो लोग गाइड कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, आर दे देमसेल्व्स यू नो वेल इक्विप्ड विद ऑल दैट नॉलेज दैट इज टू बी देयर और नॉट. जब यही हाल होगा कि हम इंजीनियरों को, डॉक्टर्स को, कॉरपोरेट लीडर्स को, मतलब ACC और CA के वे बंदों को जिनके काम अकाउंटेंसी, सर्जरीज, ऑपरेशंस या ऑन फील्ड काम करना है, उनको लाके क्लासरूम में बिठाएंगे, उनको लाके हेड्स बनाएंगे, उनको लाके प्रिंसिपल्स बनाएंगे, तो फिर यही होगा. बेचारे जो टीचर्स का लॉट भी आएगा वो भी बर्बाद ही होगा, उनके हाथों से बच्चे भी बर्बाद ही होंगे, एंड लाइक वंडरफुल, पूरी जनरेशन ही तबाह होगी फिर तो. इट्स सो हर्टफुल. एक किसको बंदा आई मीन वो ठहराए रिस्पॉन्सिबल?
The system is made by us human beings. We are responsible by ourselves. We should be very considerate about every step that we take and every action that we commit, because every action as per Newton's third law of motion has a reaction, right? So अगर वो ऐसे लोग भी एम्प्लॉय कर लिए जाएं जिनको खुद कुछ नहीं पता, तो उसका रिएक्शन वो रेपरकशन ही होगा जो अल्टीमेटली टीचर और टीचर के जरिए बच्चे भुगतेंगे। जो हेड्स हैं, जो हेड्स देख रहे हैं या जो देखेंगे फ्यूचर में, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आई एम लाइक, ये मेरी इल्तिजा है, प्लीज़ सराउंडिंग में इन बातों का ख्याल रखें, जस्ट टू सेव अ कपल ऑफ बक्स। ये बहुत गलत है यार, हम ये तो नहीं कर सकते ना कि किसी को भी उठा के टीचिंग इंडस्ट्री में आने दे दें। दिस शुड बी मेड अ कंपल्शन के वी शुड ओनली बी एम्प्लॉइंग दोज पीपल हु एक्चुअली नो द रूट्स ऑफ what they're about to teach or what they're about to do. Having a degree in a certain subject and having a sound knowledge about that is a huge universal difference. इस वक्त भी कराची में हमें हर गली कोने में से, हर घर में से ना 10-10 PhD और MPhil और MA केवल लिटरेचर के और अंग्रेजी के और लिंग्विस्टिक के और पता नहीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लोग निकल आएंगे। लेकिन आप उनसे घुमा के कुछ भी 2-3 चीज़ें इधर उधर की पूछ लें, उनके करिकुलम से हटके उन्हें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो रट्टे लगा लगा के वहाँ तक पहुँचते हैं। और किस तरीके से हमारे यहाँ रिजल्ट्स आते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी जगहों पे चल रहा है, 95-90% जगहों पे जो हो रहा है वो हम सबको पता है, वी ऑल नो। आई एम टेकिंग सम मोर कॉमेंट्स ओवर हियर. Sarvat had something to say. She said, however, some mainstream schools have achieved. Okay, this was Sir's comment, and then एक second, Sarvat. Hello, Miss Shamsa. I can see your comment. Thank you for joining. It's so lovely having you here. I have been trying to ignite this. Thank you. Without delay, through my comments, my video messages, and above all, my detailed videos with resources, strategies, and live classroom experiences with learning outcomes are there. Not a single minute to everyone watch, implement in their own classrooms. Very true. हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे लोग बैठ के टिकटॉक्स देख सकते हैं, हमारे लोग बैठ के फजूल की चीज़ें देख सकते हैं यार। बहुत सारी रोस्टिंग चैनल्स पे आप देखें मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होंगे और बेचारे हम एजुकेटर्स जो है वो गले फाड़ते रह जाएं और जो है वो मतलब अपना शोर मचाते रह जाएं अपने चैनल्स पे या अपने प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम तो बोरिंग लगते हैं लोगों को। हम जैसों को तो लोग, हमारी पाकिस्तानी आवाम का माशाल्लाह जो इतना अच्छा मेंटल मेकअप है, लोग देखना पसंद नहीं करते। और अभी कोई फारिग सी चीज़ आप लगा दें, आपको 2 दिनों में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे उनके चैनल्स पे। It's just like, I mean, so bad on so many levels. I really would appreciate more output from you people. बहुत सारे माशाल्लाह जो लोग एक्सपीरियंस करते आए हैं बहुत सारी चीज़ों को, जो देख रहे हैं वो अपने भी एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, अपना इनपुट शेयर करें। आई वुड लव टू नो। अभी आज की सुबह की बात है कि जब मेरा ये वाला मतलब थोड़ा सा, एक तो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला जो मेरा टॉपिक है, जो थीम है, उसमें ऑल्सो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हुई थी। एक मैसेज मुझे लगा कि शायद इसका प्रॉब्लली उस तरह नहीं गया जो खाली टॉपिक के टाइटल से मैं देना चाह रही थी। बट अगेन मतलब जो है वो मैंने फिर क्लियर किया, वो मेरी बहुत अच्छी कलीग हैं खैर। तो बट अगेन द थिंग इज़ दैट के ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई सेड दैट्स अनदर थिंग, एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट अ मास्टर ऑफ नन इज अनदर थिंग। सो द सेकेंड वन, the latter one is like more, I mean, thought provoking, yeah, that is deserving or worthy of more attention, because we should eradicate this kind of a mindset. See, there's nothing wrong with actually constantly educating ourselves in different domains. Yeah, once we are already a very integral part of the teaching industry, जब हम already हमारे पास certain degrees हैं, certifications हैं, qualifications हैं, हम professional development courses कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम खुद को improve करते हैं किसी और भी particular subject area के अंदर, और हमारा area of strength कुछ और भी अगर वक्त के साथ बन जाता है, if we are able to develop a certain passion about something, so there's no harm in teaching that. But at least we should be having, I mean, 100% knowledge about that. इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ये ना कि लाइक अगर if I talk about myself, I'm a huge clinical psychology aspirant. Clinical and forensic psychology like have my heart. मतलब मुझे मेरा बस चले तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ इन चीज़ों को पढ़ती रहूँ, और मुझे बड़ा शौक है प्रैक्टिकली ये चीज़ों को लाइक एक्सपेरिमेंट करने का, प्रैक्टिकल समझने का, देखने का, और ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। पीपल हु नो मी वेरी वेल, हु आई एम वेरी क्लोज विद, दे नो माई लव एंड माई लाइक क्रेजीनेस फॉर साइकोलॉजी दैट आई पोजेस।
इसका मतलब ये तो नहीं है ना मैं जाके ओ लेवल्स ए लेवल्स की साइकोलॉजी की टीचर क्लेम करने बैठ जाऊँ खुद को कि जस्ट बिकॉज मैं अगर सारा वक्त रीडिंग बहुत करती हूँ या मैं डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखती हूँ या अगर मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी आता है तो आई कीप ऑन रीडिंग दोज मेडिकल जर्नल्स दैट आर पब्लिश बाय गोराज आउट देयर ऑन देयर वेबसाइट्स एंड एक्चुअली बड़ी उनकी अप्रूव्ड और मतलब वेरीफाइड जो उनकी वो होती हैं वर्क्स होते हैं वहाँ पे इन डिटेल इन डेप्थ मेडिसिन के पूरे एनालिसिस होते हैं, क्योंकि खाली वो लिमिटेड नॉलेज मेरी मतलब इतनी नहीं है कि मैं जाके पढ़ाना शुरू कर दूं क्लासरूम में उसके ऊपर। तो हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि जस्ट बिकॉज उन्होंने एक सर्टेन अगर डिग्री ले ली किसी चीज़ में तो वो कर सकते हैं। वेरी ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड आई एम सेइंग दिस थिंग दैट बिफोर एक्चुअली having myself enrolled into an MA in English literature का program, I started teaching way before. I was only 18.5 when I started teaching. After that time back in the day, but I had passion, I had die-hard passion, I had extreme undying love for English, जो अभी तक है और वो दिन ब दिन इग्नाइट हो रहा है. इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग 10 folds as I age, as I grow, as I I'm working on myself in the industry, because again it's a growth and fixed mindset, right? पढ़ाना मैंने बहुत पहले से शुरू किया है क्योंकि बचपन से मुझे किताबों से इश्क था, बचपन से मुझे अंग्रेजी से बहुत उनसीयत थी एज अ सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज बोथ. मुझे जब मैंने पहली बार भी इंडस्ट्री में कदम रखा था तो मैंने सोचा था कि नहीं एटलीस्ट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ. देयर इज़ अ ह्यूज रोड टू लर्निंग, बहुत लर्निंग होनी है, बहुत कुछ अभी सीखना है इस इंडस्ट्री में. इंशाल्लाह खुद पे बहुत काम करना है बिकॉज आई नो नथिंग बट एटलीस्ट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई डू हैव माई सब्जेक्ट नॉलेज. मुझे ये पता है कि मुझे मेरा जो सब्जेक्ट है कॉन्टेंट है उसको मुझे लेके कैसे चलना है. कल ही की बात है, when I was in my online session, one of my bachas was like so heartbroken and he just told me about one of his teachers in the past कि उनके स्कूल में जो टीचर उनको पढ़ा रहे थे अंग्रेजी ग्रेड 9 तक, लाइक ओ लेवल्स का लेवल जो ग्रेड 9 का पहला साल स्टार्ट हो जाता है, 9, 10, 11 जो O1, O2, O3 हमारे 3 लेवल्स होते हैं. तो 9 के अंदर तो स्कूल वाले प्रिपरेशन ही करवाते हैं मोस्टली ना पूरा साल, नॉर्मली तो यही होता है. तो 9 के अंदर उनको जो अंग्रेजी के सर पढ़ा रहे थे वो किसी और स्कूल में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा के आए थे सालों से. उसने कहा मिस तबाही मचा के रखी थी, तभी हम लोगों के इतने बुरे रिजल्ट्स आए थे, कभी समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और हमारी इतनी बुरी है ना एक बेसिक्स रही हैं. और जो है वो मतलब बाद में भी गॉट टू नो कि द रीजन बिहाइंड दैट वाज बिकॉज दैट टीचर वाज अ PhD टीचर इन सम अदर स्कूल. बोलते हैं मुझे तो उन बच्चों का सोच रहा हूँ जिनका बेड़ा गर्क करके वो वैसे ही आए होंगे और हमारा कर रहे थे. So are we like, is this the regard that we want our students, our kids to have for us educators who happen to be such role models and people who actually are supposed to be looked up at? क्या ये होना चाहिए कि बच्चे हमारे बारे में ये रिगार्ड रखें कि यार मतलब टीचर्स तो मतलब उनको तो कुछ नहीं आता, वो तो कोई भी किसी को कुछ भी पढ़ा लेता है. टीचर तो वो होता है जिसके लिए बच्चे इतने छोटे छोटे मासूम हमारे सारे, चाहे वो किसी भी ग्रेड लेवल के, वो ये सोचते हैं कि यार हमारा टीचर है, हमारा सुपर हीरो है, आवर टीचर नोज एवरीथिंग. हमारे टीचर को तो सब आता है. मम्मा आपको नहीं पता, मेरे टीचर को पता है, मेरे टीचर ने बोल दिया. नहीं मम्मा, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, आई एम गोइंग टू डू दिस बिकॉज माई टीचर सेड सो. दिस टीचर, दिस एजुकेटर इज जस्ट नॉट अ टाइटल, इट्स जस्ट नॉट अ लेबल, इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट. मतलब इट्स एक्चुअली अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ विजन, इट्स अ मिशन. ये एक पूरा विजन है, ये एक सोच है, ये एक नज़रिया है, ये एक तो फाउंडेशन जिस जो हमें रखनी है. तो हम लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस. आई मीन द फायर एंड फ्यूरी दैट आई हैव इन माई सेल्फ, आई कैन गो ऑन दिस टॉपिक फॉर एवर एंड एवर, लाइक सीरियसली, because our students look up to us for guidance and in return what are those poor souls getting out of such people who themselves know nothing? Hi Miss Sabina, I can see you. Thank you so much. Thank you dear for the appreciation. A few days back I saw this I'll share one more experience. There was this very lame message that I saw on one of those educational platforms some days back. अच्छा, और लोग ऐसे मैसेज तो एनोनिमस करके डालेंगे, एक तो क्योंकि उनको अपनी इज्जत भी बड़ी प्यारी होती है कि लोगों ने अगर उनकी डीपी देख ली, उनकी शक्ल देख ली, उनकी ऐसी बातें और उनकी सोच सुनी तो फिर मतलब उनका क्या ही इम्पैक्ट रह जाएगा. तो मतलब आप खुद ये सोचें ना कि जब वो बात ऐसी करते हैं, एक तो कि उनको अपनी शक्ल दिखाने में या नाम दिखाने में भी इतनी शर्म आती है, तो वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी तो दिखा नहीं सकते. दैट्स ऑल्सो थॉट प्रोवोकिंग इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब मुझ जैसा बंदा अगर एडमिन या मॉडरेटर किसी भी ग्रुप का हो ना, मैं तो कभी ज़िंदगी में ऐसे लेम किस्म के कमेंट्स को एक्सेप्ट ही ना करूं, बल्कि उस बंदे को साथ पहले इतना लंबा एक पूरा लेटर लिख के भेज दूं कि पहले तो प्लीज़ है ना अपने आप क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट करें और गौर करें, उसके बाद आप आइएगा पढ़ाने की बातें करने. सो द क्वेश्चन वॉज दैट दिस पर्सन सेड कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब बट ओनली फॉर 4 months
मतलब आई एम लुकिंग फॉर अ टीचिंग जॉब, प्लीज़ रिकमेंड मी सम स्कूल और सम प्लेस. मुझे सिर्फ 4 months काम करना है, उसके बाद आई ऑलरेडी हैव अनदर जॉब दैट आई एम गोइंग टू जॉइन, बट आई जस्ट वांट टू जॉइन इन दिस गैप. Not a single response was there under her comment section. I was the only one who wrote a huge text out there. There are a lot of jobs, a lot of options that you can juggle with in this very short tenure that you want to spend your time in. Why don't you just go and take up some behind the counter job in a chain store, or why don't you just go at some departmental store का cashier, कोई डाटा एंट्री कर लो घर बैठ के, कोई टाइपिस्ट की जॉब पकड़ लो. नहीं, मतलब टीचिंग इंडस्ट्री में आके बच्चों के साथ जुल्म करना ज़रूरी है 4 महीने के लिए. मैंने बात बहुत उनसे आराम से की थी, बट मैंने अपना पूरा पॉइंट उनके सामने रखा. मैंने कहा प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से ऑन सच पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पैशनेट एजुकेटर्स आउट देयर whose feelings are really hurt and who get offended by this kind of, I mean these kind of talks and this kind of a behavioral pattern or mindset. Teaching is not a child's play. Like, just because you have another dream job that's awaiting you after 4 months, you cannot just feel free and pleasant to spend your 4 months like you're roaming around in some garden. ऐसे आप आगे बच्चों के साथ नहीं कर सकते. तो उन्होंने कहा कि नहीं है ना, मैं पहले भी कर चुकी हूँ इस तरह, बट मेरा मकसद वो नहीं था इन दिस एंड दैट, और आई एम सॉरी इफ यू गॉट ऑफेंडेड, और बस अजीब. फिर शी ट्राइड टू कवर इट अप, which was again very stupid and like nonsensical because it didn't make any sense. अगर कोई पैशनेट इंसान होता है ना, अगर वो 10 साल से भी चाहे काम कर रहा हो, मगर उसमें पैशन नहीं होगा ना, तो वो बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा. और जिसके अंदर बच्चों के लेकर एक बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, या वो रैपॉर्ट डेवलप होता है ना, तो वो हमेशा सबसे पहले उसके दिमाग में ना पहला सवाल बच्चे आएंगे. एवरीबडी असाइड बच्चे. Whatever I am doing, is this justified with the kids? Whatever I am teaching, is this like great for the kids? Whatever knowledge am I going to impart in my children, is this going to be beneficial for them in the long run? क्या इससे उनकी स्किल सेट डेवलप होगा? Students are our priority. They should be our priority by all means and in all costs, by all costs. Exactly, Ms. Savina, it's not. That's what I'm just trying to like inculcate. And I mean, I know a lot of you, mashallah, over here are well learned people, and I'm so happy to have this intellectual crowd right now in front of me who's observing me, क्योंकि माशाल्लाह आप सब टीचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मेरे सीनियर्स हैं. आई लुक अप टू यू पीपल. मैंने आप लोगों से खुद इतना सीखा है इन द लॉन्ग रन यार. और मतलब हम लोग सारे, आप हमारे माशाल्लाह, हम आपको देख के सीख रहे हैं. हमारे जो जूनियर्स हैं उनको वो हमसे खुद सीखें. तो एक इट्स अ ब्यूटीफुल चेन अगर इसको समझा जाए. लेकिन अफसोस तो वहाँ होता है ना यार, दुख तो वहाँ होता है ना, जब हमें 10-10 साल और 14-14 साल बाद भी इंडस्ट्री में वक्त गुजारने के बाद ये पता चल रहा होता है कि यार आज तक हमने जो किया था और इतना सब कुछ किया, उसमें से इतने सारे मसले थे, क्योंकि प्रॉब्लली हमारे सुपरवाइजर्स को ही इतना आइडिया नहीं था, या कहीं ना कहीं उन चीज़ों में इतने मसले थे, वो इतने अपडेटेड नहीं थे. तो वो अपडेटेड क्यों नहीं थी? बिकॉज उनके ऊपर के जो हेड्स थे, प्रॉब्लली उन्होंने भी कभी इतनी तरजीह नहीं दी इस बात को कि वो देखेंगे वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. अगेन एज मिस सरवत यू जस्ट सेड अ व्हाइल बैक के इट्स अ विशियस साइकिल. इट इज़ अ विशियस साइकिल यार. मतलब एक अजीब सी कैट रेस लगी हुई है, पता नहीं रैट रेस लगी हुई है, क्या चल रहा है कि बस पीपल आर जस्ट वर्किंग बिकॉज दे थिंक दे हैव टू वर्क. तो वर्क तो इतना सारा है दुनिया में यार, व्हाई डू दे हैव टू गो फॉर टीचिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड. इतने आराम से लोग कह देते हैं मुंह उठा के कि मतलब टीचिंग इज़ अ वेरी लाइक ईजी जॉब, इट्स ईजी मनी. उन लोगों का तो लाइक सीरियसली दे आर रॉन्ग इन द हेड, राइट? दे आर अफेक्टेड इन द हेड. There's just no explanation or anything that can actually fix that mindset. If they think teaching is easy money, I mean, all they are taking away from that entire thing is money and nothing else. That's what they think. I always say that doctors and teachers have to be selfless. Very true. And I remember that, statement of my former principal, mashallah, from one of a very fine brand that I've been, fortunate enough to work with. In fact, one of my wonderful head is also sitting over here, my former section head. So she knows our wonderful head, Miss Sifat. आपको तो पता है कि हमारी पुरानी प्रिंसिपल जो थी वो मतलब हमेशा क्या कहती थी कि मतलब टीचर्स आर फ्रंट लाइन वर्कर्स जस्ट लाइक डॉक्टर्स. मतलब एजुकेटर्स आर द प्राइड ऑफ द नेशन यार. एजुकेटर्स एंड टीचर्स आर लाइक रोल मॉडल्स. हमेशा उन्होंने डॉक्टर्स, जब कोरोना का टाइम था, पैंडेमिक का टाइम था, और जब टीचर्स स्कूल जा रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस और हाइब्रिड लर्निंग चल रही थी कि थोड़ा घर से थोड़ा स्कूल जाके पढ़ाना, तो फिर हमेशा हमारी प्रिंसिपल एक ही बात को कहती थी कि भाई टीचर्स आर फ्रंट लाइन वर्कर्स जस्ट लाइक डॉक्टर्स, देयर नो लेस. बिकॉज अगेन वो भी बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल सेल्फलेस होके अपना टाइम, अपनी मोहब्बत, अपना नॉलेज सब कुछ देते हैं.
they are also imparting like a lot of things into the students, just like a doctor takes care of their patient, his or her patient, और वो भी इस time में keeping their own health at stake, like they were showing up, all of the educators at different organizations, and they were giving their services despite of the potential threats of the contagious virus. Majority of so-called teachers join teaching industry without any certification and training, not dedication or passion towards this sacred profession. That's what I'm saying. कुछ दिन पहले एक बंदी ने लिखा था कमेंट सेक्शन में, जब लोग अपने पैशन के बारे में बात कर रहे थे, अगेन उसी तरह के ग्रुप्स की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे समझ नहीं आता, इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं जिससे दिल बड़ा ख़राब हो जाता है। बंदा अच्छे मूड में ग्रुप खोले और मूड ख़राब होकर ग्रुप बंद करना पड़ता है। एक मोहतरमा थी, उन्होंने थोड़े दिन पहले कमेंट सेक्शन में फरमाया था कि मेरी तो मजबूरी है, मैं तो टीचिंग मजबूरी में कर रही हूँ, आप लोग तो पता नहीं पैशन से पढ़ा रहे हैं। मतलब आई वाज स्टन्ड कि तो बीबी किसने बोला है ऐसी मजबूरी बैठ के निभाओ यहाँ पे, मतलब जाओ, बोले हु व्हाई आर यू इन द टीचिंग इंडस्ट्री। लिटरली दिल तो यही चाह रहा था कि आई टॉक टू हर इन दैट टोन ओनली, बट ऑब्वियसली दोज पीपल डोंट हैव देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट के वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठ के इस तरह की बातें करते हैं यार, अजीब अजीब किस्म की, मतलब विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट के उनका इम्प्रेशन सामने वालों पे क्या जा रहा होगा, और उन्हीं के हेड्स ने अगर उनके वो ऐसे लेम कमेंट्स पढ़ लिए तो वो बेचारे अपने फैसले में पछता रहे होंगे कि हमने किसको हायर कर लिया बच्चे बर्बाद करने के लिए हमारे। मतलब शी वॉज लाइक के मैं मजबूरी से पढ़ा रही हूँ, तो नीचे लोगों ने उनको क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि भाई है ना, अगर मजबूरी है तो बीबी आपको ऐसा भी किसने बोला है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आपको खामोखा बच्चे आप ज़बरदस्ती करोगे उनके साथ, वो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वो फेल होंगे, आप यू वोंट बी एबल टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ अ क्वालिटी टाइम और अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी एज यूर सपोज टू, एज यूर मेंट टू डू, और जो उनका हक है, जो वो डिजर्व करते हैं, दे डिजर्व अ बेटर टीचर। तो शी वाज लाइक नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है, खैर मैंने पढ़ाया है, रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे अच्छे आए हैं, पढ़ाती तो मैं शौक से ही हूँ, लेकिन मजबूरी है। मतलब आई मीन पैराडॉक्स चेक करें सेंटेंस के अंदर, मजबूरी से मैं टीचिंग कर रही हूँ लेकिन पढ़ाती तो मैं बहुत अच्छा हूँ, रिजल्ट मेरे अच्छे आते हैं। मतलब बंदा हंसे या रोए, ऐसी बातें करते हैं लोग, गुस्सा आता है कि मजबूरी में पढ़ा रही हैं आप और आप रिजल्ट अच्छे ला रही हैं, तो बहुत एहसान कर रही हैं आप टीचिंग इंडस्ट्री वालों पे और हम लोगों पे, सब पे, और हमारे बेचारे मासूम बच्चों पे। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब लिटरली यानी कि ऐसी बातें कर देते हैं अजीब, और फिर इतने स्टूपिड किस्म की जस्टिफिकेशन है कि उनको कवर अप करते हैं एज इफ दे जस्ट सेड नथिंग और दे जस्ट क्रैक द जोक। इतने सारे लोग नॉन सीरियस, ये जो बिहेवियर दिखता है दिन ब दिन, बस यही फिक्र है कि हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाए। इट्स अ हाई टाइम, इट्स समथिंग रियली क्रूशल, दीज थिंग्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, दे शुड बी आई मीन टेकन केयर ऑफ before hiring. Heads should consider about the skill sets more rather than only mere certifications and mere degrees. I'm not saying that I have that attitude के God forbid ये खाली एक piece of paper ही तो है, नहीं। I do have a growth mindset myself, alhamdulillah, I'm an educated person। मैं ये नहीं कह रही, उनकी अपनी वर्थ है, लेकिन एक पूरे के पूरे इंसान की वर्थ को, उसके स्किल सेट को, उसके पैशन को एलिमिनेट करके आप सिर्फ डिग्रीज का रोना तो नहीं रो सकते ना। I myself have been, visiting a lot of top-notch brands after this short break that I had taken from my former employer, and just because I don't at the moment, own a couple of degrees from some sort of ये top-notch कोई institute at the moment, जिस तरह की उनको चाहिए, मतलब डिग्री उस लेवल के लिए जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे A levels and O levels and all, और just because I don't own those बड़े बड़े लाखों लाखों रुपए के certifications right now, जो कि हमें पता है कि सारे जो फेमस बड़े ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल, मतलब जो करा रहे हैं वो ब्रांड्स, तो वहाँ के जस्ट मेरे पास वो नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू देम दे थिंक कि नहीं, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोजीशन। बेशक कोई PhD किया हुआ इंसान जिसको अंग्रेज़ी के दो जुमले भी नहीं बोलना आते होंगे, उसकी अंग्रेज़ी बिल्कुल मतलब क्रुक्ड होगी, उसकी ग्रामर ब्रोकन होगी, वो बच्चों के साथ वो रैपोर्ट डेवलप नहीं कर सकेगा, वो बेशक उसको क्लासरूम नॉलेज नहीं पता होगी, उसको पेडागोजी और मेथोडोलॉजी के साथ चलना नहीं आएगा, 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है, दे गो आउट ऑफ द विंडो, बट अगेन दैट पर्सन वुड बी सेलिब्रेटेड बिकॉज ही हैज़ अ डिग्री और अ सर्टिफिकेट। ये बायस्ड बिहेवियर है ना इतना ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी का, यही लोग, इसी वजह से लोग हैं जो इनडिसाइसिव होते हैं ना, फैसला साजी में जो मसले होते हैं, और जो ये सिर्फ ये सोचते हैं कि जस्ट डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स आर एवरीथिंग, देयर जस्ट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग देयर नथिंग,
दे आर समथिंग, लेकिन एक पूरे के पूरे इंसान की, उसकी स्किल सेट की, उसके पैशन की, उसके अंदर के वो जो एक जज्बा है बच्चों के साथ काम करने का, खुदारा उसको मत तोड़ें, उसको डिमोटिवेट मत करें। पैशनेट एजुकेटर्स तंग आके इंडस्ट्री से भाग रहे हैं आज, वजह यही है, उनको वो हक नहीं मिल रहा जो वो डिजर्व करते हैं, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो उनका हक है, जिस तरह से वो चाहते हैं, जिस तबके के साथ फ्लरिश करना उनको वो दिया नहीं जाता, जस्ट ऑन द बेसिस के नहीं है ना, अभी नहीं क्योंकि अभी आपके पास ये सो एंड सो डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट तो वक्त के साथ आ जाएगा ना, आप भरोसा तो करो, आप मौका तो दो। इंसान अपने आप को साबित करने वाला करके दिखाएगा, अपने आप को प्रूव करने वाला, परफॉर्म करने वाला करके दिखाएगा परफॉर्मेंस। अगर फ्लॉज थोड़े बहुत हर इंसान में होते हैं, लूप होल्स हर जगह होते हैं, अगर टीचर्स और एजुकेटर्स में भी जो पैशनेट लोग होते हैं उनमें भी अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई इशू आ जाता है, किसी का कोई हेल्थ कंसर्न है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, प्रॉबेबली कोई छोटे मोटे, अगर 10 में से 8 टिकलर्स पर भी बंदा पूरा उतर रहा है ना, तो 2 टिकलर्स को थोड़ा सा इंसान मतलब कर सकता है एक्सेप्ट, इतनी गुंजाइश तो होती है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो यार मतलब अल्लाह जब माफ़ कर देता है इंसान को, इतना हिसाब किताब तो शायद मरने के बाद खुदा की ज़ात नहीं लेगी। तो मतलब अदारे वाले क्यों इतने फिक्स माइंडसेट वाले और इतने हार्ड हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है कि आई मीन व्हाई डू आवर पीपल हैव टू बी लाइक दिस, कि नहीं भाई यू आर सपोज टू बी 10 out of 10 अदरवाइज यू आर यूजलेस, व्हाई इज दैट सो? मतलब इवन द हेड्स देमसेल्व्स, नोबडी कैन क्लेम परफेक्शन, परफेक्शन इज द मिथ, इट इज द मिथ, just screw it, it should be screwed because it's just not existent. Nobody was perfect, nobody can be perfect. Idealist होना is something else, कि आप जितना काम करें आइडियल तो करें, हक अदा करें, परफेक्शन से कुछ नहीं होता। बिकॉज ये तो एक अजीब सा एक इल्यूजन है ना, इवन जो सब सीखते सीखते ही पहुंचे हैं, डिग्रियां लेते लेते इंसान बूढ़ा हो जाता है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है, फिर जब जाते हैं, जब फाइनली जॉब करने बेचारे निकलते हैं मतलब अच्छे खासे 30 साल उम्र में, तो एचआर वाले कहते हैं कि वी कैन नॉट हायर यू बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस गेन करने का मौका हमारे अदारे वाले देते कब है लोगों को? इंटर या ग्रेजुएशन की लेवल पे या साथ साथ पढ़ते पढ़ते अगर कोई पैशनेट इंसान जाता है तो उसको तो टर्न डाउन कर दिया जाता है 10 दफ़ा कि यू डोंट हैव एनी डिग्री राइट नाउ। इट्स अ वियर्ड, आई मीन अजीब, समझ नहीं आता बंदा इसको एक्सप्लेन कैसे करे। नौकरी के लिए तजुर्बा चाहिए, तजुर्बे के लिए नौकरी चाहिए, तो बंदा करे क्या? मतलब जंप कर ले कहीं चढ़ के, मतलब सुसाइड कर ले, क्या करे बंदा? मतलब ये बातें हमें अंडरस्टैंड करनी होंगी ना, वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड बी अ बिट फ्लेक्सिबल ओवर हियर। अप्रोच होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई फील दैट आई वाज ब्लेस्ड इनफ कि मैं मतलब इंटर के बाद से अगर काम कर रही हूँ तो आई हैड दैट डाई हार्ड पैशन, आई गॉट आउट, आई ट्राइड टू मेक माई सेल्फ इन द माई प्लेस, a place for myself in the industry. I just tried to get out, I tried to prove myself, I'm working on myself till date. From that time there's no turning back, alhamdulillah. Untiringly मैंने इतने efforts किए जितने मुझसे हो सके, और constantly I'm learning and I'm learning and relearning, and ये cycle चल रहा है और ये चलेगा, और मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। लेकिन I was accepted at that time at my 5th or 6th attempt of trying to get myself inducted, just on the basis of my confidence, या probably spoken power, या soft skills, or whatever you may say. Because I was constantly being turned down by the manager or the HR or the receptionist over there कि भाई you're too young right now. इंटर के बाद मतलब क्या मतलब है, कोई अभी सर्टिफिकेट भी नहीं है, डिग्री तो बहुत दूर की बात है, आपको नहीं हायर कर सकते। You're just a kid, you need to complete your education, go and do your graduation and then come back. I was like, what do you know about me? मतलब at least I need a chance, right? Until and unless you don't give a person a chance, you cannot judge them. ऐसे तो लोग पीएचडी करके आते हैं तब भी उनको कुछ नहीं आता, तो फिर क्या कहेंगे स्कूल वाले उनके बारे में कि नहीं अभी आप जाएं और कुछ पढ़ के आएँ, जबकि इट्स द हाईएस्ट एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन ऑन द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू माय लिमिटेड नॉलेज। तो भाई मौका देना सीखना चाहिए लोगों को, दूसरों को। जब अटेम्प्ट मुझे एक्सेप्ट भी कब किया स्कूल वालों ने, मजबूरी का फ़ायदा तो उठाने में वैसे भी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम सरे फहरिस्त है ना। मुझे एक्सेप्ट मेरी नॉलेज या स्किल्स या एक शौक़ या अंग्रेज़ी के लिए मेरे मतलब इश्क की बेसिस पे नहीं किया गया। मुझे पहले सबसे पहले जो 14 साल पहले एक बिल्कुल मेडियोकर सा एरिया का स्कूल था, इंग्लिश मीडियम, जिसका बड़ा नाम है खैर मार्केट में इन अ वे कि बस वो बहुत सारे कैंपस खोल के बैठ गए हैं, खैर वो बड़ा फेमस वाले उसमें नहीं नाम, बस कैंपस बहुत हैं उनके। तो खैर उन्होंने एक्सेप्ट किस बात पे किया था, जब उनके 5 से 6 टीचर एक साथ स्कूल छोड़ के भागे हुए थे और उनके मिड टर्म्स बिल्कुल 1 महीने की दूरी पर थे, तब आई वॉज एक्सेप्टेड इन दैट स्कूल। तो ये तो हमारी टीचर्स को इंडक्ट करने का क्राइटेरिया होता है कि वो पजल पीस है, वो गैप फिट करने के लिए, फिल करने के लिए वो बंदा आता है।
कि 4 लोग भाग गए तो आओ तुम्हें पकड़ के डाल दें और बस तुम जगह फिल कर लो, पेपर चेक कर लो, काम कर लो, पढ़ा लो और जाओ। उसके बाद आई वॉज बींग फोर्स्ड टू ज्वाइन, उस वक्त मुझे सेकेंडरी दे दी एज पर माई विश, as I was saying, I want to go to grade 6 and 7, at least middle school, not primary babies because they're not my cup of tea. I'm not an early years person, so I won't be able to, get along with in that level, matlab in terms of the padhai and handling. I can teach, seniors, let me do that. But they just wanted me to stay there for 3-4 months for that time period, jab within a month jab exam aa rahe the, checking karwani thi, uske baad again they wanted me to go back to the primary levels, कि नहीं, you're too young right now, you don't have a degree. Was I a joke to them? That's how my career started. At least I switched that place within a jiffy without giving it a second thought. Because somebody who cannot respect me enough, or somebody who is going to exploit me and think that I am some sort of koi, I don't know, some sort of probably, koi like juggling ball or something, that I'm just going to be, like rolling around from here and there according to their wish. When they needed me, when they wanted me to fill in that gap and check the exam papers and do all that, so I took up that position. I, just put my entire effort into that. I did everything. एंड नाउ व्हेन दे आर डन विद ऑल ऑफ दैट, इनका मकसद पूरा हो गया, तब मुझे वापस प्राइमरी में भेज रहे हैं। तो पहले नहीं दिखा था कि मैं खाली इंटरमीडिएट हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं छोटी हूँ, आज से 14 साल पहले। ये बायस्डनेस अभी भी है, 14 साल बाद भी दिल शदीद दुखता है, अभी भी ये बायस्डनेस है, ये ड्रामे हैं, ये मसले हैं हमारी सोसाइटी में, नहीं ख़त्म हो रहे। कोई इंसान आ गया, टीचर्स आपके गए हुए हैं, डाउनसाइज इधर स्कूल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बैठे बैठे टर्मिनेट कर रहे हैं, या फिर अगर टीचर्स खुद चले जाते हैं फॉर वन रीज़न और दी अदर बिकॉज दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज दे आर सपोज टू बी ट्रीटेड, तो गैप फिल करने के लिए कोई भी इंसान आ जाता है, उसको पकड़ के रख लिया जाता है कि आ जाओ, यूर वंडरफुल, यूर एवरीथिंग। मतलब सारी दुनिया का टैलेंट उस वक्त उस इंसान में दिखता है। दे आर रेडी टू लेबल दैट पर्सन एज आइंस्टाइन, न्यूटन एंड आई डोंट नो जितने बड़ी पर्सनैलिटीज गुजरी हैं। काम हुआ, पेपर चेक हुए, रिजल्ट्स बने, उस बंदे की बिल्कुल लाइक लिटरली वो वहाँ से वहाँ बाहर गिरता है। दिस इज हर्टफुल, दिस इज नॉट हाउ अ टीचर इज सपोज टू बी ट्रीटेड, दिस इज नॉट व्हाट एन एजुकेटर डिजर्व्स, दैट टू समवन सो पैशनेट, जो इतने गट्स थे जिसके अंदर, जो उस वक्त आपकी मजबूरी में आपका साथ देने के लिए खड़ा हो गया जब आपके पास कोई भी नहीं था, जब आप लिटरली ऐसे फिर रहे थे एंड टीचर्स वर रिक्वायर्ड कि कोई तो आ जाए, लिटरली कोई, कहना तो अच्छा ही लगता है, मगर वो फीलिंग होती है कि कोई 5वीं फेल भी आ जाए ना, इस टाइम पे हम हायर कर लेंगे, क्योंकि बस हमें पेपर चेक करवाने हैं, हमें क्लास पढ़वानी है, बच्चे संभलवाने, वरना पेरेंट्स आ जाएंगे हम पे, हमारे पास कंप्लेंट आ जाएंगी कि आपके पास तो टीचर नहीं है। ये बहुत बुरी बातें लगती हैं सारी मुझे, और ये बहुत सारे लोगों का दिल दुखाती हैं। आई नो बहुत सारे वो एजुकेटर्स जिनका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि बच्चों के साथ मजाक हो, या जो अपने सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, जो बहुत पैशन रखते हैं अपने काम के लिए, और जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ इस इंडस्ट्री के नाम कर दी हैं कि जीना मरना सब इस इंडस्ट्री के नाम पे ही है, तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी है ये। दिस इज़ अनजस्ट ऑन सो मेनी लेवल्स, एवरीवेयर, एनीवेयर, I don't know how, wherever far and wide this, session of mine today would be broadcasted, whoever would be watching it in future, whoever is watching it, and if you're actually on some authoritative level, if you have ever been, if you have peers like that, if you know those people, wherever, अगर if you're in a position of power, अगर आप power की position में हैं, if you are in any sort of position of power, please always, just make it a point, make sure कि हमेशा इंसान के पैशन को पहले देखें, परखें, उसके बाद डिग्रियां और सर्टिफिकेट और सब काउंट करता है, ठीक है, बट सर्टिफिकेट्स तो साथ साथ इंसान गेन कर सकता है, डिग्रियां भी साथ साथ पढ़ के आ रही होती हैं। अभी तक पढ़ रहे हैं ना, हम भी अभी तक पढ़ रहे हैं, पढ़ना तो नहीं रोका, खुद पे ग्रोथ पे काम करना तो नहीं रोका, और स्कूल वालों की भी तो ये जिम्मेदारी है, वो भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जब वो चीज़ें सीरियसली करेंगे तो जो पैशनेट लोग हैं वो रहेंगे ना साथ में। वो हायर ऐसा लॉट कर लेते हैं जिसका खुद का कोई सीरियसनेस नहीं होती तबके की तरफ, और फिर वो उनको तो बेदारी लगती है ना, जब स्कूल उन पर इन्वेस्ट करेगा कि हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आपको 4 बजे तक बैठना है छुट्टी में, 3 बजे तक बैठना है, या आपके वर्किंग सैटरडे थे तो उनकी तो पहले जान निकल जाएगी, बिकॉज उनका तो यही मसला है ना कि हमें तो जस्ट बिल्स पे करने के लिए करना है, हमें तो खाली कॉलेज की फ़ी पे करने के लिए है ना टीचिंग करनी है, हमें तो खाली हमें शॉपिंग करनी है, या हमें जस्ट अपनी कोई पढ़ाई पूरी करनी है, या हम टाइम पास करना है, घर पे बहुत बोर हो रहे हैं, या और कोई नौकरी की घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे। आधी से ज़्यादा खवातीन का तो पाकिस्तान में यही मसला और रोना ख़त्म नहीं होता कि घर वाले और ससुराल वाले और इजाज़त नहीं दे रहे किसी और जॉब की, तो टीचिंग कर लो, बच्चों का बेड़ा गर्क कर लो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, उस बात की इजाज़त मिल जाएगी। वाह, that's not an escape. I mean, they take it as an escape. This should not be an exemption.
मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो टीचिंग करने आ जाते हैं। फिर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग बोझ लगती है, ऐसे लोगों को तो ट्रेनिंग्स बोझ लगेंगी, टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, कोई भी काम जो रिक्वायर होगा कि ये करें वो करें, ये वर्कशॉप है वो सेशन है, तो उनको तो बेजारी लगेगी ना, बिकॉज उनका पैशन नहीं है। पैशन वाले सारी सारी रात बैठ के काम कर लेते हैं विदाउट फ्लिंचिंग, विदाउट कंप्लेनिंग। हम तो करते आए हैं, हमने तो कभी नहीं मुंह बनाए। So I'm sure a lot of you might be able to resonate with my words, my feelings, my emotions. This weird एक जो एक rage kind of एक आ जाता है जज्बातियत निकल के, because it's like very hurtful, very infuriating, very triggering, very, I mean, I just don't know so much. It's an amalgamation of a lot of emotions that probably are not even indescribable. I fall short of words at times when I try to navigate through this kind of a scenario. कितने सारे माइंडसेट्स हमारे यहाँ ऐसे हुए हुए इंडस्ट्री में जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एंड वी शुड बी मेकिंग अ पॉइंट। मेरी प्लीज़ उन तमाम एडमिन्स और मॉडरेटर्स से रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, जो इस तरह के ग्रुप्स चला रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, कुछ भी फ़रोग देने के लिए इस चीज़ को, या लोगों के लिए कोई भी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जॉब की या मतलब एनी सॉर्ट ऑफ कोई, मतलब वो इस तरह काम करना चाह रहे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी इन वन वे और द अदर, एंड अल्टीमेटली इन द टीचिंग इंडस्ट्री। वो इंतहाई फारेग और लेम और मतलब बेसलेस और पॉइंटलेस किस्म की ना चीज़ों को अप्रूव करना प्लीज़ बंद कर दें, और एक चीज़ को शर्त बना लें, बिल्कुल डंके की चोट पर लिटरली शर्त बनाएं कि जब तक कोई पोस्ट मतलब अपने नाम से कोई नहीं आएगी ना, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। एनोनिमस इज समथिंग जो कि अगर आप उसका मकसद देखें ना, थोड़ी सी अगर हम अंग्रेज़ी पे यहाँ ज़रा रोशनी डालें, थोड़ी सी आके, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, तो द टर्म एनोनिमस इट सेल्फ मीन्स समथिंग वेरी सीक्रेटिव। सही है ना, कि जो इंसान जिसको मतलब कोई ऐसी प्राइवेट बात या कोई ऐसी मिस्टीरियस बात या कोई ऐसी सीक्रेटिव बात करनी है जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी को मतलब अनलीश नहीं करना चाहता, हिडन रखना चाहता है, कंसील रखना चाहता है, वो यूज़ करें। पाकिस्तानियों ने तो एनोनिमस का पूरा मतलब उसकी काया ही पलट दी है। उस बेचारे जिसने ये फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग ने ये जो वर्ड बल्कि निकाला, ये जो डाला है, ऑप्शन डाला है फेसबुक पे या कहीं पर भी, ये जिस तरीके से यूज़ हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, जो हमारे पाकिस्तानी कौम, जो टीचर्स का तबका जिस बुरे तरीके से एनोनिमस टर्म को यूज़ करते हैं पोस्ट के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ अदारों की बुराइयाँ करने के लिए, लोगों की रेपूटेशंस पे उंगलियाँ उठाने के लिए, टार्निश करने के लिए। जब दिल चाहता है दे वेकअप वन फाइन डे, दे थिंक आज तो इस स्कूल की बुराई करेंगे, आज तो उस हेड की बुराई करेंगे, आज तो बस ये बात करनी है। इज दैट व्हाट द एनोनिमस ऑप्शन वाज क्रिएटेड फॉर? फजूल तरीन चीज़ें पूछनी होंगी उन लोगों ने, एनोनिमस करके आएंगे। मतलब व्हाट इज सो डिफिकल्ट या व्हाट इज सो स्कैरी अबाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी? घर पे आपके कोई पुलिस वाले तो नहीं पहुंच जाएंगे ना स्कूल वाले आ जाएंगे, ना कोई आके किडनैप कर लेगा। मतलब चीज़ों को जिस तरह से व्हाट दे आर मेंट फॉर, वो उसको छोड़ के उसके अलावा हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही हैं, एंड दिस इज़ वेयर द बिगेस्ट फ्लॉ लाइज। तो ये जो, आई एम वेरी सॉरी टू से, शायद छोटा मुँह बड़ी बात लगे, सीनियर्स भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो ऐसे लोग हों जो एडमिन्स या मॉडरेटर्स हैं जिन भी ग्रुप्स के, मैं तभी किसी का भी नाम ले ही नहीं रही, इट्स जस्ट अ वेरी जनरल आइडिया, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दैट आई हैव एंड दैट आई फील, बिकॉज it's not that I only feel this, there are a lot of people who feel this like me. When I talk to them, when I've spoken to them, I got to know these things. We are on a common platform, so please make sure, please have some check and balance. वरना वो लेम किस्म के जो रोस्टर्स है ना, जो बैठ के यूट्यूब पे गालियाँ देते हैं, उनके मुंह खुलते हैं, उनके मुंह से गालियाँ निकलती हैं, और इस चीज़ में उन्होंने अपनी गालियाँ देने को अपना पेशा बनाया हुआ है, दे अर्निंग थ्रू दैट। उनमें और एजुकेटर्स के अंदर ये टीचिंग के जो प्लेटफॉर्म्स को जो प्रमोट कर रहे हैं बैठकर, हम में कोई फ़र्क नहीं रह गया। सॉरी टू से, अगर हमारी यही सोच है कि हर पोस्ट को अप्रूव कर देना है, हर लेम किस्म के जोक या मीम को अप्रूव कर देना है, ऐसी चीज़ें जो लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। एक और सवाल मुझे याद आया इसी से रिलेटेड, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली बात जो मैं कर रही हूँ कि नॉट एवरीबडी कैन बी अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली वही पैशन वाली बात है। कुछ दिनों पहले देयर वाज दिस पर्सन, उनका इतना लेम क्वेश्चन था उन फीमेल ही लग रही थी वो अपनी बात से, जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ था एनोनिमस करके, कि मेरा ये लोगों से मुझे सजेशन चाहिए, आई हैव अ क्वेश्चन, कि क्या अगर बच्चों की स्कूल में फ़ी वगैरह पे नहीं होती तो क्या हम बच्चों को वो करें कि हमें जो है वो बच्चों को डांटने का हक है, कि मतलब हम क्या उनको इंसल्ट कर सकते हैं? इज़ दैट इवन अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड आउट देयर फॉर सजेशन?
द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इटसेल्फ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर अकॉर्डिंग टू मी. मतलब इतना तो आई थिंक कोई भी इंसान जो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखता है उसको पता होगा कि इस तरह के फजूल किस्म के क्वेश्चन करने का तो कोई तुक नहीं बनता ना. दे आर जस्ट बेसलेस. कि इसका जवाब क्या हमें नहीं पता कि क्या किसी भी किस्म की कॉर्पोरल पनिशमेंट या ह्यूमिलिएशन या मतलब बैड माउथिंग या बीइंग एन एजुकेटर, एक रिस्पेक्टेबल एजुकेटर होने के नाते हम पे क्या ये मतलब हम पे क्या ये जेब देगा, हमें ये मतलब सूट करेगा, हम ये वाली हरकतें जाके करें या बच्चों के साथ इस तरीके से एक डिसग्रेसफुल बिहेवियर अप्लाई करें. बट अगेन कॉमन सेंस इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी कॉमन, विच इज समथिंग वी कैन वेरी इजीली सी इन आवर सोसाइटी एंड भर भर के टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर तो खास तौर पे. और जिन लोगों में है बेचारे उनको डिमोटिवेट किया जाता है, उनको सीरियस या तो लिया नहीं जाता. So there are a lot of things that have to be, worked upon, that have to be taken care of. I would really love to see a lot of more, ideas, suggestions, comments, from people who will in future also watch this. And inshallah, until next time, let me just take the last 2 comments. Your resume is used against you only to underrate you. They know your worth but won't admit that. Absolutely, because they're intimidated, darling. बहुत सारे हेड्स को पता है ना कि उनके अंदर पोटेंशियल सामने वाले कैंडिडेट से कम है. I'll be very straightforward and very open over here. बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं सोचती कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ. मुझे आज तक अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर ये आदत नहीं है. मैं जा के ना अदारों की, अदारे वालों की मैं बुराइयाँ नहीं करती कहीं पे भी. देखो, इंसान के साथ अगर कुछ गलत होता है ना, कभी उसको लगता है कि यार अगर मैं बहुत डिजर्विंग हूँ और मेरे साथ कुछ गलत हो गया या अल्लाह ना करे कोई ऐसा मतलब कोई अमल परफॉर्म हुआ जो मतलब प्रॉबेबली मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ जा रहा है, तो उस इंसान को जा करके अपने हेड से इन पर्सन उधर ही स्कूल में बात करनी चाहिए, बहुत आराम से प्राइवेटली इन अ मीटिंग. यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट एंड यू कैन वर्क ओवर देयर, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ स्कूल्स डू हैव दीज ओपन डोर पॉलिसीज. और बात करनी चाहिए, ना कि ये छोटी हरकतें के आके एनोनियमस करके एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बैठ के दे धन बुराई शुरू, मतलब बैड माउथिंग शुरू, लेक्चरबाजियाँ शुरू. ये लेक्चर ही देती हैं ये औरतें आके वहाँ पे जो करती हैं, और उससे उनका अपना कैलिबर दिखता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ कैलिबर और मेंटल मेकअप डू दे पोजेस. बिकॉज उनमें इतने गट्स ही नहीं है, उनमें इतनी करेज ही नहीं है, इतना हौसला ही नहीं है. वो डरते हैं. साथ वो लिखते भी हैं कि अगर हमने अपने आप को एनोनियमस नहीं किया, अगर हमने अपना नाम लिख दिया तो हम फायर कर दिए जाएंगे स्कूल से. तो आप तो सच बोल रहे हो ना बकौल आपके, तो आपको डर किस बात का है? खुदा की ज़ात से डरना चाहिए, तो उसको तो लोग भूल के बैठे हुए हैं इस दौर में, अल्लाह माफ़ करे. और स्कूल के हेड से डर रहे हैं जैसे कि पता नहीं रिस्क उनके हाथ में. स्कूल के हेड्स आर ऑल्सो इंसान, नॉर्मल ह्यूमन्स. एवरीबडी, ऑल द हेड्स, एवरीबडी इज मतलब अल्लाह ताला पे डिपेंडेंट. एवरीबडी इज लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन एंड सबका राज़िक खुदा की ज़ात है. तो अगर आप सच्चे हैं अपेरेंटली, जो ऐसे लोग हरकतें करते हैं, माई पॉइंट इज़ लाइक जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो ये मेन मुद्दा है आज की बात का, द पॉइंट ऑफ माई टॉक टुडे, कि जो लोग ये ऐसी हरकतें करते हैं और जिस तरह समझते हैं कि हमें तो सब आता है और फिर वो लग भी जाते हैं, बाद में उनको वो उस तरह से वो हक नहीं अदा कर पा रहे होते उस काम का, या उनको मतलब अगर कुछ आगे से बैकलैश मिल जाता है तो फिर वो सच्चाई उनसे, उनकी ईगो भी एक तो इतने से होते हैं, बिकॉज अगेन लर्निंग माइंडसेट नहीं होता, ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता, उनसे फीडबैक बर्दाश्त नहीं होता. दे कैन नॉट टेक फीडबैक, दे कैन नॉट डाइजेस्ट द ट्रूथ, दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, दे डोंट वांट टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. उनको लगता है कि यार हमें तो सब आता है, इस बंदे ने हमें बोल दिया मतलब हमें बोला हमें कुछ नहीं आता, लाइक इसने तो हमें बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर दिया. तो भाई वो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा, वो आपको थोड़े से मतलब वो बता रहा है ना कि आपके ये वीक एरियाज है, अगर ये 8 बातें अच्छी हैं तो ये 2 बातों पे आपने काम करना है, तो आप और मजीद अच्छे की तरफ जाएंगे और अबूर हासिल होगा आपको. फीडबैक हम नहीं ले सकते, हेल्दी क्रिटिसिज्म हमसे बर्दाश्त नहीं होता, रोना हमें आ जाता है, बुरा हम कहने बैठ जाते हैं हेड्स को हर बात में. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज तक सबके साथ इतना रैपोर्ट मैंने रखा है कि कभी भी मुझे कहीं भी किसी से भी कोई प्रॉब्लम हुआ है ना, मैंने डायरेक्ट जाके बात की है 1-to-1 बेसिस पे, ना के बैठ के कभी गिबतें की हो किसी प्लेटफॉर्म पे. ये मेरी ओपन गारंटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे नाम से किसी को कोई उल्टी सीधी कहानी सुनी भी नहीं दिखेगी कहीं पे, और ना मैं एनोनिमस होकर करने के ये गंदे काम शौक रखती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ सेंस इनफ. I have other things to do. मैं ये वाले काम तो मैंने कभी नहीं किए. This hurts me a lot when I see people just about anybody coming and like claiming such prestigious organizations and कुछ भी नाम लगा देंगे उनके नाम के साथ, कोई भी बुराई अटैच कर देंगे उनके नाम के साथ without giving it a second thought कि वो इतने बड़े ब्रांड को जो 40-45 या 70 साल से अगर फ्लरिश कर रहा है, जो भी है एक मुल्क के अंदर वो काम कर रहा है एक स्टेट में, तो उसकी ज़ात पे आपकी 2 बातों से कोई खास असर नहीं हो जाएगा. आप अपने आप को ही गंदा कर रहे हो, नंबर 1. और नंबर 2 ये कि अगर थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि कोई पोटेंशियल कैंडिडेट मिलते मिलते अगर आपकी वजह से उस ब्रांड को रुक गया, कि वो बेचारा सोचने में आ जाए, परेशान हो जाए कि यार है ना, अगर ये बात इस ब्रांड के बारे में लीक हुई है तो क्या वाकई ये है,
या फिर कोई बच्चा, कोई पेरेंट एडमिशन करवाने का सोच रहा हो अपने बच्चों का उस ब्रांड में, और अगर वो रुक गया, या अगर मतलब कोई मतलब सर्टेन कोई किसी को जॉब कोई जाने से रुक गया, या ऑर्गेनाइजेशन किसी को अप्रोच करने से रुक गई, तो उस चीज़ का गुनाह भी, उस चीज़ का सारा जो एक मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है ना, वो भी उन्हीं लोगों के सर पर और कंधों पर है जो ये आके बड़ी बड़ी बुराइयां लिखते हैं, बातें करते हैं, इतना सारा टार्निश करते हैं किसी की भी रेपुटेशन को विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एनोनिमस मतलब टर्म को, हमारे वालों ने हर चीज़ का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ है। यही चीज़ों को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करने के लिए ये बनी है और हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक रियली अलार्मिंग। फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन कि हमारा जब दिल चाहे हम कीबोर्ड वॉरियर बन जाएं, हम सोशल मीडिया खोलें और धड़ 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 हेड्स के बारे में नाम के साथ, स्कूल के साथ बुराइयां लिखना शुरू कर दें। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब गलत के लिए आवाज़ उठाना है, अपने हक के लिए बोलना है, ना कि किसी और की तजलील करना, खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के उनकी बेइज्जती करना। क्योंकि हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है ना कि लोगों के ऐबों पे पर्दा डालेंगे तो अल्लाह आपके ऐब भी छुपाएगा। और हमारे यहाँ हम जाके खुलेआम लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं अपना नाम छुपा कर, क्योंकि हमें बड़ी प्यारी होती है अपनी इज्जत। तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, इट शुड नॉट बी डन। At least one should have enough courage to go and speak directly about if there is any if there is a genuine issue. इशूज़ ही इतने लेम होते हैं, उनको पता है कि उनकी बात का कोई सर पैर नहीं है, तो उनकी बकवास सोशल मीडिया पे केटर हो जाएगी। एडमिन मॉडरेटर्स भी माशाल्लाह काफ़ी फारिग हैं, फुर्सत से, तबीयत से फारिग हैं कि वो हर पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे विदाउट हैविंग प्रायर लाइक इन्वेस्टिगेशन, विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस। कोई होमवर्क नहीं डन होगा उनका और वो उठा के आराम से अप्रूव कर देंगे नींद में टक 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 सारी पोस्ट को। तो दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। इससे और कुछ नहीं है, हर चीज़ की क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। एक वक्त आएगा सारे पैशनेट लोग टीचिंग इंडस्ट्री से भाग जाएंगे, कोई गिनत चुनत आवाम बचेगी। वैसे ही तबाही मची हुई है हमारी इंडस्ट्री में। तो प्लीज़ खुदारा हर किसी से वो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमें हर किसी को इन चीज़ों को, इस कल्चर को, टॉक्सिक कल्चर को प्रमोट होने से, मज़ीद प्रमोट होने से रोकना है। प्रमोट तो खैर काफ़ी हद तक हो ही चुका है, बट अगेन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड वर्क ऑन दिस। बहुत सारे लोग, और ये जो लोग आते हैं ये क्लेम करते हैं कि हमें सब आता है, क्योंकि अर्ली ईयर्स इज़ द ओनली लेवल जिसमें बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा वो यंग किड्स होते हैं, उनका कॉग्निटिव लेवल उतना डेवलप नहीं होता। तो एक सर्टन उम्र तक, उसमें भी एक सर्टन एज तक, ग्रेड 2 तक, ग्रेड 1 तक, किंडरगार्टन तक एक होम रूम टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्विफ्ट चेंज बच्चा उस लेवल पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है वो एक टीचर सारे सब्जेक्ट देखता है। ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स तो कोई भी इतना बड़ा शेक्सपियर या आइंस्टाइन या मतलब स्टीफन हॉकिंग्स नहीं बन सकता कि मुझे सब आता है। और अगर उसको सब आता है मतलब उसको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम सारे फिलोसफर्स की बात को देखें, ये जितने भी हमारे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये जो बड़े बड़े बेचारे फ़लसफ़े कर करके मतलब गुजर गए दुनिया से, तो सोक्रेटिस का कोई बड़ा एक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका एक कोटेशन है कि द एक्चुअल विजडम लाइज इन नोइंग दैट आई नो नथिंग। असली इंसान का शऊर और विजडम तो इसी में है ना कि वो ये बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। उसकी लिमिटेड नॉलेज ज़रूर है, वो अपनी लिमिटेड नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए वो जो चीज़ों पे अबूर हासिल है उसको, या वो जो कर सकता है, कर रहा है, वो उसमें ही करता जाए, ना कि वो ये क्लेम करना शुरू कर दे कि जस्ट बिकॉज मैंने एक डिग्री ले ली, 2 सर्टिफिकेट्स ले लिए, मैंने 4 क्लासेस पढ़ा ली तो मुझे सब आता है। सो प्लीज़ आई रियली होप टू get some more positive insights regarding this thing, and I would love to know about all of those people who are on the same page with me, who share the like-mindedness, who share the same thought process, and we together as a community, as educators, as educationists, teachers, we should be working towards the common goal। और ये सारी टॉक्सिसिटी जो हमें सोसाइटी में होती हुई दिख रही है, अगर मैंने वही कहा है, अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ इफ़ यू आर इन एनी सॉर्ट ऑफ पोजिशन ऑफ पावर, प्लीज़ कंसिडर दीज थिंग्स। इससे पहले मजीद सब कुछ इतना बिगड़ जाए कि द लॉस जस्ट बिकम्स सो इरिकवरेबल कि फिर ओनली सिर्फ एक रिग्रेट रह जाए। द वेरी लास्ट कॉमेंट ऑफ द डे दैट आई विल टेक बिफोर आई साइन ऑफ इज, सर्वट्स, पीपल विद फैंसी डिग्रीज नो दैट दे विल गेट पेड मोर फॉर cosmetic reasons. They make the school look good, and good schools respect your experience. Very true, very true. गुड स्कूल्स डू रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस, बट अगेन यार वही ना कि कहीं ना कहीं तो वो भी इस मतलब सोच का शिकार हैं कि नहीं, यू नीड टू हैव दैट सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट और डिग्री।
एटलीस्ट अगर अभी उस लेवल की एलिजिबिलिटी नहीं है तो 1 साल हमारे पास मिडल में बैठ जाओ, 1 साल प्राइमरी में बैठ जाओ, 1 साल आपको देख लें, 1 साल आपको हम है ना आपकी परफॉर्मेंस देख लें, उसके बाद वी विल मेक यू नो गो टू दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ योर चॉइस द नेक्स्ट ईयर। तो भरोसा करके किसी इंसान की कैपेबिलिटी पे, उसके पैशन पे, उसके करेज पे, उसके स्किल सेट पे, उसकी नॉलेज पे, उसके सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग या मोहब्बत पर उस पर भरोसा करने में क्या परेशानी होती है भाई? मतलब एटलीस्ट वो बंदा हक तो अदा करेगा ना। वो सारी उम्र जब तक वो उस अदारे में काम करेगा वो उसी बात का शुक्रगुजार तो रहेगा ना कि यार मुझ पे इतना भरोसा था अंधा मेरी हेड का, या मुझ पे मेरी काबिलियत पे इतना भरोसा था कि मैं हमेशा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, इंडेप्टेड फील करेगा वो। मतलब एटलीस्ट इस बात को लेकर कि मुझे मौका तो दिया, आई वॉज गिवन अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। ज़बरदस्ती एक केपेबल कैंडिडेट को उठा के दूसरे लेवल में फिट करना ऑन द नेम ऑफ जजिंग देयर परफॉर्मेंस फॉर अ ईयर, उसको वो काम देना, कर तो बेचारा फिर भी वो पैशन से लेगा क्योंकि वो है पैशनेट टीचर, बट उसकी स्किल्स को तो आप वेस्ट कर रहे हो ना। मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको किसी ऐसे लेवल में देखे जो लेवल शायद वो डिजर्व नहीं करता या जिसमें उसकी ज़्यादा इंक्लिनेशन उस तरह नहीं है जिसके लिए वो चाह रहा है जिस तरह करना। वो दूसरे लेवल के लिए आपको कोई और बहुत ज़्यादा अच्छा पैशनेट और एक उस तरह के लेवल का टीचर मिल जाएगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पैशनेट लोग हैं ना जो पढ़ा सकते हैं और जिनका सर्टेन लेवल्स का शौक है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो सीनियर्स को पढ़ाना पसंद करते हैं, बहुत सारे अर्ली ईयर्स के होते हैं, बहुत सारे मिडिल स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। ज़बरदस्ती आप ओ लेवल ए लेवल के टीचर को निकाल के ग्रेड 5 में नहीं बिठा सकते, वो नहीं चलेगा उसका दिमाग उस तरीके से, चाहे वो कितना भी पैशनेट हो या उसको अपने सब्जेक्ट से कितना ही मोहब्बत क्यों ना हो। बिकॉज यू आर फोर्सिंग समबडी टू लाइक ये मिस एलोकेशन ऑफ उसकी स्किल्स है ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ उसकी टाइम और उसकी एनर्जी है। अजीब बाइस्डनेस है कि जो ये फुल टाइमर्स का जो मसला है, ये जो लेडीज़ कहेंगी वी नो एवरीथिंग, उनको 6 एक ही बंदे को 4-6 सब्जेक्ट पकड़ा के दिए हुए होते हैं बजट सेव करने, और फुल टाइमर में उनको रखा हुआ होता है इतने मज़े से, और वही बंदे जो है वो सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, 6 डिजिट सैलरी पिक करेंगे और ओ लेवल्स को ए लेवल्स को पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। मतलब अगेन वही आवे का आवा बिगड़ा हुआ है हमारी तो इंडस्ट्री का। आई जस्ट होप, विश, प्रे, विद दिस नोट आई विल साइन ऑफ that we as educators, we as this community, we as the teachers would continue to work on this thing। हमारी सराउंडिंग में जहाँ हमें ये इस तरह के माइंडसेट दिखें, कोशिश करें हम काउंसलिंग करें प्लीज़ उनकी, उन्हें समझाएं। और अगर किसी की ईगो हर्ट हो रही है तो पहली बात तो इसमें ईगो हर्ट होने की कोई बात नहीं है कि किसी को मतलब अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि सबको अपने ऊपर काम करना चाहिए। चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, राइट? तब्दीली कायनात का उसूल है, और अगर इंसान तब्दीली लाने का अहल नहीं है अपने अंदर, इसका मतलब कि फिक्स माइंडसेट है पर उसका कोई इलाज नहीं है। कम से कम वो टीचिंग इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, बाकी कहीं और चल जाए तो पता नहीं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को हम एक आज अपने आप से हम एक प्रॉमिस करें और ये चीज़ हम समझें, देयर शुड बी सम टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन एंड देयर शुड बी दिस थिंग, दैट स्पिरिट शुड बी देयर, एंड एटलीस्ट ऑल द पीपल हु आर ऑन द सेम पेज, हु हैव द सेम माइंड सेट शुड बी वर्किंग ऑन दिस थिंग एज अ म्यूचुअल गोल, ताकि जितनी बेचारी मासूम बच्चे हमारे, जिन जनरेशन्स का नुकसान हो गया, जो बेचारे तबाह हो चुके और जो आगे किसी तरह अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बढ़ के वो सेट हो चुके हैं, एटलीस्ट जो अभी पढ़ रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, जो मज़ीद आने वाले बैचेस हैं, उनके साथ तो हम उनका तो हक अदा करें ना, उनको तो वो क्वालिटी मिले ना जो वो डिज़र्व करते हैं, वो टीचर्स मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। With this note, I'll sign off. Thank you so much to everyone who has joined, who has watched, who had been watching. I'm really appreciative of the time that you people took out to hear me out, and I'd love to be more than happy to cater to all the comments even after this session, whatever I see down there in the comment section, inshallah. And until next time, Allah Hafiz.